यूजुअल सर्कमस्टांसेस रिलेटिवली हार्ड होता है कि उसको एक्सटर्नल ट्रेनिंग के लिए यूजुअली टाइम मुश्किल होता है. तो अपना क्विक इंट्रोडक्शन करवा दें ज़रा बारी बारी. शम्स आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं. और दो आई नो यू पर्सनली लाइक व्हाट आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर कर दें. All fellow colleagues who are participating in this session. My education background is that I've done MBA from Baldwin University Multan and done certification in human resources from NUST on the behalf of Pakistan Institute of Quality Control, Lahore. I've also been engaged with HR metrics in SHRM certification and our basically HR analytics programs. So I have already a very strong association with HR metrics, and thanks to Zaid Saab for all his mentorship in my career and professional development. Currently, basically, my status is freelance consultant. I'm working with a food organization in South Punjab, Family Food Products, and its products are basically its distribution is nationwide. So again, it's sort of good SME cadre organization with a very growing prospects, and they are also very keen in the development and improvement of their HR portfolio, HR department functions. And in addition to this, I am basically the student of MPhil in human resources at the platform of Air University Multan campus, and I live in Multan. In my career, I have done 2 years working with the Union Bank in banking industry, and 15 years working at a power plant in HR and administration department in Balochistan. So this is the summary of my profile. So thank you very much for giving me the opportunity and time for this session. Wonderful. Thank you, Shams. I think it's a great opportunity to connect with you again. Thank you, sir. Turns out to be a good experience, inshallah. Yes, sir, sure. जी, next उबैद, आप बताइए. उबैद, आप हैं सेशन में? साकिब? यस सर, इनका इंटरनेट का इशू आ रहा है, मे बी कि अभी थोड़ी देर के बाद एक्टिव हो जाएंगे. ये डीएक्टिव हो रहे हैं. उनको माइक ही म्यूट आ रहा है. अगर फोन पे चेक तो करें उसका, इज ही अवेलेबल आल्सो और नॉट. Sir, may I comment? Right. So I think as you have already mentioned that there are 2 participants, and I think one of them is Mr. Bad, still couldn't able to connect properly. I don't know if it's my suggestion that if in the administration of this training program look at to improve the number of participants, and this program can be rescheduled, so in order to get the maximum benefit from variety of students. I don't know. जी, अस्सलाम वालेकुम. पर सब कैसे हैं? बताओ, खैरियत है? अच्छा 2 लोग हैं. आप खैरियत से वापस आ गए? ठीक है, ठीक. अच्छा, सेशन में टोटल 2 लोग हैं. एक का ऑडियो काम नहीं कर रहा, और एक बंदे के लिए आई डोंट नो कि क्या सेशन कराया जाए. मेरा यू थिंक उसको करवाएं? मेरे ख्याल में मुझे तो करवाने में मैंने टाइम ब्लॉक किया तो मैं तो 2 घंटे में आराम से करवा सकता हूँ, लेकिन आई फील इट वुड बी अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन, क्योंकि आपको भी इसका कोई खास फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि जारी बात है आपने तो वो भी एक आपके ऊपर वो रेडी पड़ेगा. मुझे उसका कोई इशू नहीं है, मैं ट्रेनर एंगल से बात नहीं कर रहा. चलें, ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू.
अच्छा, वो साकिब ज़रा मुझे शेयरिंग राइट्स दें. मैंने फजल मुकीम से बात की है. आई टोल्ड हिम सेम थिंग जो आप कह रहे हैं. सो शम्स के ज़ाहिर बात है, एक बंदे के साथ सेशन का तो कोई बेनिफिट नहीं होता. जी सर. should be more people, but he's of the view कि अगर शायद लोग को ज्वाइन कर लें, आप करवा दें, चले एक अच्छा वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हो जाएगी मेरे ख्याल में. और तो कुछ नहीं. आप ओके हैं इसमें? यस सर, आई एम ओके विद दैट. मैं तो सर बिकॉज आपका टाइम जो ना प्रीशियस है, दैट्स व्हाई. और हम तो एज अ स्टूडेंट वी कैन रीपार्टिसिपेट, इट्स देयर इज नो इशू. मैं तो अभी हमारी शम्स आज से शम्स सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो वो अपनी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से वो मैंने किसी और इंस्ट्रक्टर को हायर किया. ही इज कंडक्टिंग इट. तो टाइम को तो हमेशा इशू होता है. और डॉक्टर सिद्दत ने करवाई थी, अभी किसी और ने, वो अपने को सर्टिफाइड है. तो बहरहाल चलें, अभी एक कमिटमेंट है. आई वुड लाइक टू फुलफिल माय कमिटमेंट. तो मैंने से पूछा था अगर आप इसको डेफर में, तो फिर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होगी. बहरहाल कह रहे हैं कि जी करवा दें, तो चलें, लेट्स गो अहेड. अच्छा, मुझे साथ में ये स्क्रीन शेयरिंग राइट्स देना जरा. साकिब साहब. ये सर मैं बताता हूँ. हो गया सर, ये तो चेक करें. ठीक है, नजर आ रही है शम्स मेरी स्क्रीन? शम्स मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आई थिंक आप म्यूट हैं सर. अनम्यूट. स्क्रीन ठीक है ना? जी सर. ठीक है. अच्छा, तो शम्स थोड़ा सा ये बताइए कि इस डाइवर्सिटी की ट्रेनिंग को आप करने का पर्पस क्या है? मतलब व्हाट्स द आउटकम यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग? अपनी सिर्फ एक तो आई नो कि आपको काफ़ी प्रोएक्टिव है, एंथुसियास्टिक है चीज़ें नई सीखने में. मैंने नोटिस किया कि कोई चीज़ होती है तो यू आल्सो वांट टू एक्वायर दैट स्किल. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी मेन इस पे टेक अवे क्या है इस ट्रेनिंग से? Sir, first of all, my takeaway is to strengthen the current knowledge about diversity, and you know, and exactly this is one of the behavioral competency in SHRM framework. So having a dedicated session on diversity would definitely improve and contribute to improve that competency. And while I am in HR profession, so again having a sound understanding of diversity and inclusion aspect, it's really helpful in designing the policies and procedures and HR practices, you know, within the organization from HR point of view. ठीक है, गुड, थैंक यू. मोहम्मद अली मलिक हैज आल्सो जॉइंड. मोहम्मद अली, जरा अपना वीडियो ऑन करके थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, Alhamdulillah, Zabardast. Can you hear or see me? जी जी, एब्सोल्युटली. Okay, that's great. My name is Muhammad Ali Malik. By profession, I'm a chiropractor and running two of my small organizations. And that's what I'm doing right now. और इसके अलावा NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, और उसी के साथ साथ रेकी मास्टर एंड ऑल दैट. तो ये बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. Anything you want to ask, so we can proceed on that. तो इसमें आपकी क्या इस गोल्स हैं इस कोर्स को करने के? गोल्स के हवाले से मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस प्रोग्राम को करने से? हाउ इट कैन बेनिफिट? इस सेशन से मैं जो चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि आई वांट टू लर्न मोर अबाउट द पीपल, द वे टू हैंडल देम. ठीक है, क्योंकि बीइंग ahead of an organization, you must know how to handle different sort of peoples. They're from diverse backgrounds and all that, so you must know about that. So I'm learning new things, and that's the reason I'm here right now. चलें, गुड, ठीक है, थैंक यू. तो जैसा हमारा टॉपिक है मैनेजिंग डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, इसमें जो है ना, तो वो एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि जो पीपल एस्पेक्ट्स है, दैट्स वन कंपोनेंट.
or diversity is quite broader. It starts with the board of directors. Rather, it starts at a much higher level. Sustainable development goals se baat chalti hai. Then it comes down to the individual. So we'll talk about the different aspects, not just the people management. People management is a small component. We will discuss it also, but our focus would be how an organization can become more diverse and inclusive, and particularly how it can help the organization to become sustainable. Long run में वो कैसे operate कर सकती है, ठीक है? ये हमारा है. अच्छा, अभी चूंकि ग्रुप छोटा है तो it's an undesired situation, but at the same time it's a blessing in a sense that बातचीत करने में ज़्यादा मौका होता है as compared to larger group. तो मैं आपके साथ सबसे पहले जो है ना वो ये है कि हमने देखना है कि ये डाइवर्सिटी की नीड क्यों है. मतलब सबसे पहले होता है ना वाई, कि हम क्यों करें, और फिर वो वाई में देयर आर डिफरेंट लेवल्स. तो मैं आपको एक 360 व्यू लेके चलूंगा, हर एस्पेक्ट से आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा. तो अगर सबसे हाईएस्ट लेवल पे देखा जाए तो ग्लोबल बॉडी जो है यूएन, उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस वर्ल्ड के लिए कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, और 17 गोल्स हैं. और उन गोल्स में से एक ये नंबर 1 है जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 5. और आप वैसे भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें, इवन पाकिस्तान में तो 49% जो है ना वुमेन है. लेकिन डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ जेंडर की बात नहीं है. मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज ऑल इज इंक्लूडेड इन डाइवर्सिटी. इसके ऊपर एक मिसकंसेप्शन होती है. एवरीबडी थिंक्स, नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटी पीपल थिंक कि डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट द जेंडर. जेंडर इज वन ऑफ द की कंपोनेंट बट नॉट द सोल कंपोनेंट. तो बाकी कुछ गोल्स हैं जिस तरह क्वालिटी एजुकेशन है कि पीपल शुड हैव एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज इसके साथ आपकी ग्रोथ होती है. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि साफ सुथरे माहौल में वो काम करे. इंडस्ट्री मोटिवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडस्ट्री अपने आप को कैसे जो है ना वो रिस्पॉन्सिबली अपने आप को कैरी करे ताकि वो सोसाइटी को पोल्यूट ना करे. रिड्यूस इनइक्वालिटीज विद इन द कंट्रीज एंड पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. तो ये 17 में से तकरीबन 6 ऐसे गोल्स हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डाइवर्सिटी को वो करते हैं. फॉर एग्जांपल SDG 10 which is reducing inequalities. तो जैसे हम कहते हैं ना डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड एक्विटी, तो ये सारी चीज़ें उसको रिलेट करती हैं. तो ये हाईएस्ट लेवल पे. ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखा जाए ग्लोबल से अगर आप नीचे आए तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हैं, अभी भी पब्लिश हो रही हैं. मैं जो है करंटली आई एम वर्किंग विद ऑलमोस्ट 49 ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो डाइवर्सिटी को उसको उन्होंने अपने सिस्टम में बिल्ड इन किया हुआ है डिपेंडिंग, और उनका मैच्योरिटी लेवल भी डिफरेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन का. और फिर हम उनके साथ इम्पैक्ट स्टोरीज जो है ना वो उनकी कलेक्ट करते हैं कि हाउ इट इज हेल्पिंग द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. तो इट्स नॉट जस्ट अ लुक नाइस, लुक गुड स्ट्रैटेजी, बट इसकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये इट्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन द ग्रोथ एम्बिशन. और इसी की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो they want to become more diverse, not just in terms of the internal people but the customers, because ultimately diversity के जो focus है वो है कि to cater for the needs of your clients and the customers. तो अगर आपके for example आपके customer client जो है ना उसमें अगर नॉन मुस्लिम हैं तो आप उनके फूड, उनका ड्रेसिंग, उनकी चीज़ें, उनके प्रोटोकॉल को अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो दे विल बी मोर इंक्लाइंड टू यूज योर प्रोडक्ट्स. इसी तरह एक डिसेबल आदमी है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेबल आदमी है, उसकी नीड आप मीट करेंगे, उसको व्हील चेयर चाहिए, उसको रैम्प चाहिए, तो फिर आप अपने बिजनेस में भी ये चीज़ें सोचेंगे. अगर आपने फीमेल हायर की हुई है और उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स हैं, उनके लिए डे केयर सेंटर है, इस तरह की चीज़ें, तो फिर आप यानी कस्टमर के साथ आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है जब आप डाइवर्सिटी के एंगल सोचते हैं. वरना बंदा एक ही एंगल से सोचता है. वो कैसे कि अगर आप दुबई में जाएं एयरपोर्ट पे या किसी और कंट्री में तो वहां पर लिखा होता है प्रेयर रूम. अब प्रेयर रूम का मतलब ये नहीं है कि नमाज पढ़नी है आपने. एनीबडी कैन गो एंड प्रे ओवर देयर, क्योंकि नमाज तो मुसलमान पढ़ता है ना, सारे तो नहीं पढ़ते. सो डाइवर्सिटी मीन कि एवरीबडी हैज सर्टेन नॉर्म्स, प्रोटोकॉल, सर्टेन डिजायर्स, और उसको उसके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना, उसको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन में लेके आना, उनको एंगेज करना, ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन को इम्प्रूव करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन आपकी ज़्यादा सस्टेनेबल हो. सिर्फ सस्टेनेबल भी ना हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो.
मतलब जिस कम्युनिटी में अगर आप रह रहे हैं उधर की कम्युनिटी के साथ कोई नहीं हायर कर रहे हैं, सारे लोग बाहर से ला रहे हैं, इम्पोर्ट करके ला रहे हैं, वो लोग तो फिर उस फैक्ट्री का धुआं खाने के लिए हैं, ठीक है। या उन लोगों को तो रोड के ऊपर कंजेशन ही मिलेगी या सुबह जो ऑफिस खुलते हैं, वो जो लोग इसका जो ना वो खमियाजा भुगतते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी आप इस प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करते हैं कि यार हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ देम, अपनी क्या पॉलिसी प्रोसीजर बनाएं। तो डाइवर्सिटी इज अ वेरी वेरी ब्रॉडर सब्जेक्ट। अच्छा, अब इस चीज को करने के लिए जो इस वक्त पूरी दुनिया में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली प्रैक्टिसेस को रिलीज करती है, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द सेंटर फॉर ग्लोबल इंक्लूजन, और मैं जो अभी आपके साथ सेशन करूंगा उन्हीं की करूंगा उस, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया इन्होंने। अदरवाइज तो अगर डाइवर्सिटी पे आपने बात करनी है तो एनी कंसल्टेंट कैन पिक अप दी स्लाइड्स फ्रॉम द गूगल और आके आपके साथ बातचीत कर सकता है। लेकिन इस स्टैंडर्ड को चूंकि बनाने में 112 ग्लोबल एक्सपर्ट्स, मैं खुद उनमें शामिल था, तो हर 3-4 साल बाद ये एक नया स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं। अब चूंकि कोविड में चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई थी तो दे रिवाइज द स्टैंडर्ड, और नया स्टैंडर्ड अभी आया है विच इज़ कॉल्ड GDEIB। शम्स शायद आपने नाम सुना हो, बिकॉज हम काफ़ी अलर्ट्स भिजवा रहे होते हैं ग्रुप्स के ऊपर इसमें। उस स्टैंडर्ड के एंगल से देखेंगे। स्टैंडर्ड के एंगल से देखने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी काम करते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, पाकिस्तान की चीज़ नहीं है, ये इंडिया की नहीं है, ये UAE की नहीं है, ये पूरे दुनिया की है। तो ऑफ कोर्स आपके प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस वो डिफरेंट है पूरी दुनिया से, लेकिन एक आपका जो फ्रेमवर्क होता है वो आप उस फ्रेमवर्क को देख के उसी को आप कस्टमाइज करके यूज करते हैं। तो मैंने लफ्ज़ यूज किया ग्लोबल DEI बेंचमार्क्स, जिसकी एब्रीविएशन है GDEIB, ठीक है। अच्छा, इसको जरा पढ़ेंगे, ये टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट इज द GDEIB और हु हैज रिटन दिस थिंग। Global Diversity, Equity and Inclusion Benchmarks, GDEIB, are the standards for organizations around the world. These progress in managing diversity and fostering inclusion. आप भी अपने साइलेंटली पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें इसको, और थोड़ा सा शेयर कर दें आप क्या समझ आइए इससे। I think अली आपकी आवाज में काफी एको है, आप बेशक आई थिंक ही लॉस्ट द कनेक्शन। तो शम्स, इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है? Sir, what I am getting the understanding that global diversity, equity and inclusion benchmarks is the framework that is basically developed with thorough research and expert panelist inputs and contribution and experiences. And what is the purpose is how we can basically identify gaps and improve diversity and inclusion practices within our business environment. That includes internal and external stakeholders, and overall objective is goal is to improve the organizational efficiency from within the within the organization stakeholders and outside organization stakeholders. Thank you. तो ये स्टैंडर्ड है जिसको हमने लिमिटेड वे में करना है इस तरीके से कि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को बोलते हैं फाउंडेशन, जो कि एड्रेस करता है स्ट्रैटेजी को, और इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, विजन, लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर। दूसरा जो है इन चारों एरियाज को ग्रुप बोलते हैं। दूसरा ग्रुप जो है इंटरनल, अट्रैक्ट एंड रिटेन पीपल्स, ये HR का ग्रुप है, रिक्रूटमेंट, एडवांसमेंट, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और जो थर्ड ग्रुप है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, दिस इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, वेयर you take care of some of the CSR activities,
organization's products and services, diversity over there, the marketing of the organization, or responsible sourcing, which is the supply chain. اور چوتھا جو گروپ ہے اس کو بولتے ہیں bridging, جہاں آپ ساری چیزیں جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں, align and connect with the organization performance. اس میں آرگنائزیشن کی اسیسمنٹ ہے, کمیونیکیشن ہے, وہاں سے آپ نے کیا لیسنز لرن کر رہے ہیں, اور آپ اپنی دیکھیں گے سسٹینیبلٹی آرگنائزیشن کی امپروو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اچھا, سسٹینیبلٹی کو سادے الفاظ میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ frequently you hear this term. تو what is the sustainability? پلین لینگویج میں کیا مانی ہے اس کی؟ استحکام, اس کا اردو میں میننگ ہے استحکام, یعنی کسی چیز کا مستحکم ہونا, مضبوط ہونا, سسٹین کرنا, ہاں, تاکہ وہ لمبے عرصے تک اپنی پرفارمنس دے سکے. یس, سسٹینیبلٹی کسی بھی کانٹیکس میں استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کہیں میں نے مکان بنایا, اگر آپ کا مکان ہے تو آپ نے ویدر پروٹیکشن کے لیے بنایا, اور اگر یہ ویدر سے گرمی سردی سے پروٹیکشن دیتا ہے تو اس میں استحکام ہے نہیں, ورنہ ٹپکنا شروع کر دے تو استحکام نہیں ہے اس میں. تو ہم نے اپنی Can we say that, sir, this is maintaining your position or consistency in your basically performance? long term, yeah, Yes, sir. Yes, sir. ability to perform long term. ٹھیک ہے. اچھا, جو اس کی اوریجنل ایکڈیمک ڈیفینیشن ہے نا, وہ تھوڑا سا انہوں نے اس پہ ذرا لاجک کریٹ کر کے تو اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بنائے ہوئے. تو ذرا آپ گوگل کریں گے اس کو, میں بھی کرتا ہوں, اس کو دیکھتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی کی جو ڈیفینیشن کیا ہے, وہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو definition of the ability to be maintained at a certain rate or level, جیسا آپ نے کہا, avoidance of depletion of natural resources in order to maintain an ecological balance. یہ اس کی دوسری ڈیفینیشن ہے. اچھا, یہ پہلی والی تو بڑے کلیئر ہے جس طرح آپ نے کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اوور آل جو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو رسپانسبل طریقے سے کنزیوم کرنا. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے انہوں نے براڈر اس لیے کیا ہے کہ اس وقت جو سوسائٹی میں چیزیں چل رہی ہیں نا, اس میں بہت کوئک گین ہے, اور اس گین کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لاسز ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم میں وہ سسٹین نہیں کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سادی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں ہزارہ سے بلانگ کرتا ہوں, اور وہاں پر فارسٹ بڑے کامن ہیں بھی, بلکہ پہلے زیادہ تھے درخت. اب ایک ٹائم تھا ٹمبر مافیا نے یہ فیل کیا کہ یار یہ تو درخت ہیں, بڑی قیمتی جو نا چیز ہے, اس کو آپ بس انہیں دڑا دڑ کاٹنے شروع کر دیے. اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ وہ جو آپ کی وہاں کا جو واٹر سسٹم ہے, ٹیمپریچر سسٹم ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا لانگ ٹرم میں آٹومیٹک نہیں چلتی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کا لاسز ہوتا ہے آپ. اور اسی طرح اگر آپ اپنے فار ایگزامپل ایریا میں آپریٹ کر رہے ہیں, جس طرح ملتان میں, آپ نے شاید یہ نوٹس کیا ہو نہیں نہ کیا, آج آپ کسی جگہ ڈرلنگ کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے, بور لگاتے ہیں یا ٹیوب ویل لگاتے ہیں, آپ کو اگر 200 فٹ پہ پانی ملتا ہے, جب 8-10 گھر لگاتے ہیں تو 300 فٹ پہ پانی ملتا ہے, پھر 400 فٹ پہ چلا جاتا ہے. کیونکہ ریسورسز کو آپ ایک امپراپر وے میں جب اوور کنزیوم کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ ڈپرائیو ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے. تو یو ہیو ٹو کنزیوم دا تھنگس ان اے سسٹینیبل وے. تو یہ اس کانٹیکس میں بھی ہے کہ اب ہماری آرگنائزیشن میں کہ سوسائٹی میں جو ریسورسز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ایک بندہ ہینڈی کیپڈ ہے تو وہ ریسورس ہے, وہ فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہو سکتا ہے, مینٹلی ہینڈی کیپڈ تو ضروری تو نہیں مینٹلی بھی ہینڈی کیپڈ. That resource need to be utilized judiciously. اسی طرح ابھی آج کے ٹی وی پہ ایک ایڈ بھی آتا ہوتا ہے وہ فیمیل ڈاکٹرس کا کہ 77% of the female doctors do not pursue their career. ابھی یہ بھی ریسورسز کی ویسٹیج ہے کہ آپ MBBS ہاسپٹل یا میڈیکل کالجز میں کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے, وہاں پر لڑکیاں جا کے میرٹ پہ جاتی ہے, ڈاکٹر بنتی ہیں, شادی ہوتی ہے, پریکٹس نہیں کرتی, تو ریسورسز کا لاس ہے کہ نہیں ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اپنے ریسورسز جو بھی ان کو جوڈیشلی یوز کرنا, دس از آلسو پارٹ آف دی ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ جو اسٹینڈرڈ کی ہم نے بات کی تھی
GDEIB, इसको जरा देखें और अपना कोई क्वेश्चन रेज करें इससे. आप साइलेंटली पढ़ें इसको, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं. मैं सब कुछ आपको, मैं भी एक स्टोरी फॉर्म में सारी चीजें शेयर करना, डिस्कस करूंगा, ताकि आपको हर एंगल से पता चल जाए कि डाइवर्सिटी क्या है, कहाँ से इसकी क्या कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूजन क्या चीज है, इक्विटी का लफ्ज यूज होता है, और फिर कैसे आप उस स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं. हम पाकिस्तान के अंदर ना अवार्ड भी यूज करते हैं GDIB के, और उसमें ये इस दफा भी 28 ऑर्गेनाइजेशन ने उनको विन किया है. तो अब अवार्ड्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ. तो क्या समझ आया इस पैराग्राफ से आपको? इट्स बेसिकली टेलिंग अस कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तौर पे फंक्शन करती हुई अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर किसी भी किस्म का जो एक एक्सप्लॉइट करने वाला कंटेंट है किसी भी हवाले से, इट कुड बी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इट कुड बी लाइक रेसिज्म, कि तुम पठान हो, तुम पंजाबी हो, तुम सिंधी हो, बलोची हो, व्हाटएवर वी कैन यूज द वर्ड फॉर दैट, रेसिज्म, और वाइट और ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक, वी कैन यूज दैट, ऑल दीज थिंग्स. तो बेसिकली कैसे इन चीजों को हमने एक बैलेंस में लेकर आना है, और बैलेंस के अंदर लेकर आने के बाद हमने आपस में इन तमाम का एक हार्मनी क्रिएट करनी है. सो वी कैन जनरेट मोर यूजफुल एंड प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, जिसमें ग्रोथ जो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, और जो लोगों का आपस में बिहेवियर है उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज और हार्मोनाइज किया जा सके. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड विद दिस पैराग्राफ. और इसमें मजीद जो है वो दोस्तों से कहूंगा कि इनपुट कीजिए. और बड़ा अच्छा कंसाइज तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है. तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं शम्स? नहीं सर, इन्होंने बड़ा अच्छा कम्प्रीहेंड कर दिया इसको. Obviously, just I would like to add one thing that in today's competitive environment, this global diversity and inclusion benchmarks basically are a very good guideline for us to look at the areas that come into this domain of diversity and inclusion, and we can improve our organization and take active advantage, in आरफीन without. काइंडली म्यूट कर दें अपने आप. साकिब, अच्छा चलें, गो अहेड. थैंक यू. Yes, sir. Having sound practicing this D&I global D&I framework, we can also be having a competitive advantage as well. जबरदस्त, थैंक यू. अच्छा आरफीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपने अभी ज्वाइन किया, मोस्ट वेलकम. कैन यू हियर मी? ओके. सो जैसे आपने बिल्कुल सही इस डायरेक्शन में इसको एक्सप्लेन किया है. मैं एक दफ़ा आपने एक मेरा रिलेटिव था, अभी भी है, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, तो उससे मैंने एक वो केबल ऑपरेटर्स का बिजनेस, केबल ऑपरेशंस का बिजनेस था. तो ऐसे मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि यार ये नॉर्मली केबल वगैरह ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं. अभी तो पता नहीं PTA ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जब छुट्टी हो, वीकेंड हो, या कहीं ईद का मौका हो, क्योंकि आप घर पे होते हैं तो TV ज़्यादा देखते हैं ना, फारो होते हो. तो मैंने कहा इसमें तो आपको कंप्लेंट भी ज़्यादा आती होंगी, तो ईद ऐसा मौका है जब सारे लोग छुट्टियाँ जाते हैं, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं बिजनेस को? तो उसने कहा मैंने तो बड़ा आसान काम किया. मैंने क्यों? कहते हैं मैंने उसमें अपने वर्क फोर्स में क्रिश्चियंस भी रखे हुए, कि हमारी तो जब केबल का छुट्टियों का मौसम होता है इस तरह की सीजन, तो सारे मुस्लिम जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, वो छुट्टी जाते हैं, हमारे पास क्रिश्चियन काम करते हैं. तो आपने इस एंगल से देखना है कि यार जो सोसाइटी में डिफरेंट लोग जो हमें नॉर्मल हालात में नजर नहीं आते या हम नोटिस नहीं करते, उनको आप यूटिलाइज करके अपनी बिजनेस को आगे कर सकते हैं, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. तो बेसिकली वेल डिजाइन एंड वेल एग्जीक्यूटेड D&I strategy can help the organization in achieving the vision mission, attract and retain diverse talent. जिस तरह अभी आया चुंदरीगढ़ रोड पे कराची पे, मैंने देखा नहीं लेकिन मैं TV पे उसकी वीडियो है मेरे पास. वहाँ पर डेफ
کا ایک بیسیکلی ڈیفینیٹلی آئی تھنک بلائنڈ پیپل کا ایک ریسٹورینٹ ہے جو کہ KFC نے بنایا ہوا ہے, بٹ وہ لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا سارے, اور وہ اتنے ٹرینڈ ہیں اپنے اپریٹس کے ساتھ کہ نارمل کسٹمر کو ٹریٹ کرتے ہیں, دے ٹیک کیئر آف دا نیڈ آف دا کسٹمر. تو وہ کسٹمر بھی وہاں پر اچھے طریقے سے جاتے ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے کہ رسپانسبل آرگنائزیشن ہے, تو اٹ کریٹس اے گڈ سارٹ آف ٹرسٹ بلڈنگ ایفرٹ. ٹھیک ہے, تو اٹریکٹ اینڈ ریٹین ڈائیورس ٹیلنٹ, بلڈ ہائی پرفارمنس ٹیمس, اور there are loads of benefits for the organization which is diverse and inclusive. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسٹینڈرڈ کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس کو ذرا ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے تو تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پوری ہو, بہتر ہو. سو GDIB help the organization realize the depth and breadth and integrated scope of the D&I practice, assess current state, determine the future state. کچھ HR جیسے سبجیکٹ میں ایک بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بیس لائن ڈیفائن نہیں کر سکتے. اکاؤنٹس میں, فائنینس میں بیس لائن ڈیفائن آسان کرنا ہوتا ہے. آپ کے دن 2 × 2 4, اگر آپ نے 4 چیزیں کرنی ہیں, 2 ہیں آپ کے پاس, تو آپ کے دن 2 اور کرنی ہے. بٹ اس میں جہاں پر کوانٹیفیکیشن نہ ہو تو پھر یہ بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کہاں پر پروگرس کر رہا ہے, کدھر نہیں کر رہا. The good part of this standard is that with the help of this standard you can determine, you can do a diagnostic, اور ڈائگنوسٹک کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے, جس طرح آپ میڈیکل میں اپنے ڈائگنوسٹک کرتے ہیں کہ یار چیک کرو میرا بلڈ پریشر کیا ہے, میرا شوگر لیول کیا ہے, میرا کولیسٹرول لیول کیا ہے. تو یو کین ڈو اے ڈائگنوسٹک ان یور آرگنائزیشن بائی یوزنگ دی اسٹینڈرڈ, اور پھر جب آپ کو گیپ نظر آتا ہے اس گیپ کو کور کرنے کے لیے آپ سلولی اینڈ گریجولی اپنی ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یو کین یوز دا اسٹینڈرڈ ٹو سیٹ دا ڈیزائر, ٹو set and agree the desired state, and before that assess the current state, engage employees, short-term and long-term goals for the organization, measure the progress. Even you can use the standard to hire and train and provide consultancy to the organization, and this is a gift to the organization in a sense کہ یہ جو standard ہے میں آپ کو link بھجوا دوں گا, you can download the free copy, مجھے یاد کرا دیجیے گا. There is no cost for it because the Center for Global Inclusion USA نے بنایا ہے, that's a non-profit organization, اور وہ بہت ڈاکومنٹ ہے 82 پیجز کا. تو آپ اس لنک پہ جا کے اپنا فارم فل کریں اور اسٹینڈرڈ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, دی سینٹر فار گلوبل انکلوژن USA, اور اس کا الٹیمیٹ گول آف ڈائیورسٹی, ایکوٹی اینڈ انکلوژن از دیٹ اٹ ہیلپس آرگنائزیشن بیکم مور ایکویٹیبل اینڈ بیٹر فنکشننگ. اور وہی بات ہے جو انہوں نے پہلے ڈسکس کی تھی اپنا علی رضا نے, جو ہے نا بیسیکلی اس کو اٹ کریٹس اے بیٹر equitable world for everyone, advance an inclusive culture and improve the organization effectiveness. یہ اس آرگنائزیشن نے جس اسٹینڈرڈ بنایا اس کی تھوڑی سی لائف پروفائلنگ ہے. 1993 میں انہوں نے اپنے اسٹارٹ لیا تھا. اٹس گلوبل, چونکہ بیسڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹس اونلی US اسپیسیفک, اٹس گلوبل بیکاز دے انکارپوریٹ پیپل فرام ایوری پارٹ آف دا ورلڈ. پھر ہر 2-3 سال بعد ریویژن ہوئی اسٹینڈرڈ میں, 1993, 2006, 2011, 2014, 2016, 2017, and now the last version after the COVID was which is published, جس کی میں ابھی ذکر کر رہا ہوں, 2021 ورژن. اس آرگنائزیشن کے تھوڑا سا اسٹرکچر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا there are 3 main authors of the standard. Nini Mulafi, she's from Africa. Julie is from USA. Ellen is also from USA. Julie Marijuana, she was previously a chairperson of the American Society for Training and Development. پھر اس آرگنائزیشن کا ایک بورڈ بھی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرس. یعنی all over the world there is one board which got 9 people. I'm also one of them. And these are the global experts, 112 global experts who have developed the standards. They represent almost every nation. Okay? So fortunately, I'm also one of the expert panelists who have developed the standard. اور اس کو آپ کو یوز کرنے کے لیے میں آپ کو لنک بھجوا سکتا ہوں, اس پہ آپ جائیں, بلکہ میں آپ کو ایگزیکٹ لنک بھجواؤں گا, بلکہ ابھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ اس کو یوز کر کے تو یو کین ڈاؤن لوڈ دی اسٹینڈرڈ اور آپ کو استعمال کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. تو چاہیے آپ کو اسٹینڈرڈ یا نہیں؟ سینڈ کیجیے بالکل. I will receive this in our inbox or WhatsApp. آپ کو چیٹ باکس میں, چیٹ میں وہ
करता हूँ ना तो फिर वहाँ से जाके आप इसको Okay, okay. We will copy these links and we can use that after the training as well. बिल्कुल. इस लिंक को आप फॉलो करें. डाउनलोड GDI में लिखा हुआ है, ठीक है. तो आप इसका एक फॉर्म भी होता है, वो फॉर्म फिल करेंगे तो आप सेंड इट डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और वो यूजर एग्रीमेंट होता है विच इज इम्पॉर्टेंट, ताकि उनको पता चले कि हु हैज डाउनलोडेड, ठीक है. तो वो दैट्स वन ऑफ द एथिकल रिक्वायरमेंट. सो आई एम पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो चैट बॉक्स मैंने डाल दिया इसको, डाउनलोड द GDI भी. Got it. ठीक है. Got it. Got it. और बहुत सारे और भी इसमें रिसोर्सेज हैं, स्लाइड्स हैं, जो कि अपनी फ्यूचर में कंसल्टिंग या ट्रेनिंग आपने करनी हो उसके लिए भी आपको ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं. अच्छा, That's great. That's great. तो एक सेकंड में थोड़ा सा और भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज सम टाइम ये साहब है ना यहाँ पर रिसोर्सेज, इवेंट्स, डाउनलोड, यूजर टूल्स. तो इधर आपको काफ़ी गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं. और अच्छा, फिर चूंकि ये ग्लोबल है तो इसका हर महीने ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेंचमार्क्स और मिसलेनियस स्लाइड, यहाँ से अगर आपको कुछ स्लाइड्स चाहिए वो आप जाके स्लाइड्स भी आप डाउनलोड कर लें, ठीक है. और तो अपने फिर कस्टमाइज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं. और दूसरी बात इसमें क्या है कि डाउनलोड यूजर टूल्स में क्या आ रहा है, हाँ, इसका एक न्यूज़ लेटर भी है. आप हर महीने एक न्यूज़ लेटर पब्लिश होता है, और उसमें जितनी भी ग्लोबल के वर्ल्ड वाइड जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो इस न्यूज़ लेटर के अंदर कैप्चर होती हैं. तो इट्स अ वेरी कंसाइज. आप उस न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर दें तो आपको D&I रिलेटेड दुनिया में कोई भी डेवलपमेंट्स किसी कंट्री में, किसी रीजन में हो रहा है, तो वो आपको ये न्यूज़ लेटर के थ्रू वो मिल जाते हैं. हमारे अपने पाकिस्तान के कंटेंट्स यहाँ से पब्लिश होते हैं USA से, बल्कि पिछला अगर मैं आपको शेयर करूँ, थी न्यू जर्सी में, वहाँ पर उसकी पिक्चर है. Sorry, we cannot see, I think, the things you are showing right now. We are seeing only the use and permission slide right now. It's okay. It's okay. अच्छा, मैंने फिर काफी इंफॉर्मेशन दी. अब नजर आ रहा है? Yeah. ठीक है. तो ये कह रहा था कि सेंटर फॉर ग्लोबल इंक्लूजन से जो हर महीने एक न्यूज़ लेटर पब्लिश होता है, जिस पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड D&I, for example, Nestle Pakistan in 5 years span. So we call it most inclusive company. तो इसको भी हमने वहाँ से, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की कमिश्नर हैं सादिया खान, उसके थ्रू उनको, और ये पाकिस्तान के बारे में कवरेज है इसके बारे में, और दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय USA. तो ये जो न्यूज़ लेटर आपके पास, अगर आपका इंटरेस्ट हो ना, तो बाकी 5 साल के न्यूज़ लेटर पड़े हुए हैं, 2022, 2021. आप किसी भी मंथ पे जाके खोलें इसको, उस मंथ का न्यूज़ लेटर आपको मिल जाएगा. ठीक है. That's great. That's great. क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये ऑन गोइंग है. आपको पता है ट्रेनिंग करने से ये चीज़ें इतनी जल्दी वो नहीं होती.
तो Obviously, कोई भी चीज है जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे तो आप उसके बारे में प्रॉपर एक नॉलेज नहीं ले सकते हैं. You can get information but you cannot get the knowledge from that. बिल्कुल. और अब तो जमाना जो है ना वो एक SHRM कॉन्फ्रेंस में गया था तो बड़ा अच्छा थिंकर था वॉल स्ट्रीट का यूएस में. उसने कहा था टाइम ऑफ एवरेज इज ओवर. यानी एक पुराने जमाने में गुजारा लायक काम होता था ना आपका, अभी गुजारा लायक काम का नहीं है. यू हैव टू गेट डीपर एक्सपर्टीज बिकॉज कंपटीशन बहुत टाइट है. तो आपने उसमें जब तक आपके पास डेप्थ नहीं होगी तो फिर उसमें सर्वाइव करना या सस्टेन करना उस प्रोफेशन में बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. अच्छा तमीना, आपने हमें अभी ज्वाइन किया, कैसी हैं आप? ठीक है. Yes, I'm fine, thank you. आपको आवाज सही आ रही है? जी ठीक आ रही है. अगर आप चाहें तो 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करके तो अपनी जरा इंट्रोड्यूस करा दें अपने आप. मैं वीडियो के बगैर इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. My name is Tahmina Khurram and I have more than 15 years of experience in different technical, commercial, compliance and people related areas. My academics include masters in computer sciences and I'm running a small business of training and consultancy with the name Strategics. Also, I am teaching management courses in FAST University and in International Islamic University. अच्छा, तो आप वहाँ पर फास्ट में एज विजिटिंग फैकल्टी कर रही हैं? जी, विजिटिंग फैकल्टी. आपसे मुलाकात नहीं, 2 दिन पहले डीन्स का डिनर था तो मैं भी आया था फास्ट यूनिवर्सिटीज में. वहाँ पर जो आप NBSC का एक फंक्शन हुआ था इस वीकेंड पे, आप थी वहाँ पर? बस नहीं, मैं वहाँ पर नहीं थी. अच्छा, चलो ठीक है. तो ये जनाब स्टैंडर्ड के बारे में आई होप अभी जो चीज़ें कवर करनी है बात वो तो हम रिपीट मुश्किल हो जाएगा. सेंटर फॉर ग्लोबल इंक्लूजन ने इसको बनाया है. अच्छा, ये उसका फ्रेमवर्क है, यानी GDIB का फ्रेमवर्क है कि इसमें 4 लेवल्स हैं: फाउंडेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड ब्रिजिंग, और हर एक की कैटेगरीज हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको स्टैंडर्ड B शो करा दूँ ताकि आपसे जब मैं बात करूँ तो यू शुड बी एबल टू रिलेट इट के ये स्टैंडर्ड है क्या, जहाँ मैंने आपको कहा है ना कि आप इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द कॉपी ऑफ द स्टैंडर्ड. 82 पेजेस का ये स्टैंडर्ड है और इसके अंदर सारी शुरू में कुछ इंट्रोडक्शंस हैं. और ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसमें सबसे पहले स्टेटमेंट मेरी है. they like my statement and published over there. और फिर इस स्टैंडर्ड को बिल्ड करने में जिन ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया है वो ये इनके हैं, नाम दिए हुए हैं. मेसी और इनका आप स्टोर्स का आपने नाम सुना होगा, सिटी बैंक एंड मॉन्ट्रियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. तो दे हैव स्पॉन्सर्ड. अब इस स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? असल चीज़ स्ट्रक्चर है. इसको देखें आप कि 4 ग्रुप्स हैं: फाउंडेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल. उनके अंदर 15 कैटेगरीज हैं. ये विजन, लीडरशिप, स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, बेनिफिट्स, राइट, ये कैटेगरीज. ये मेन चीज़ें ये हैं. टोटल 275 बेंचमार्क्स. और अगर आप जब यहाँ पर जाएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको ये मिलेगा. फॉर एग्जांपल आप रिक्रूटमेंट पे जाना चाहते हैं. ठीक है. तो ये कैटेगरी 4 है. यहाँ पर देख रहा आपको नज़र आ रहा होगा कैटेगरी 4 रिक्रूटमेंट. तो आप इस पे जाएं रिक्रूटमेंट पे. तो ये अब जब रिक्रूटमेंट की कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको पहले उसकी एक नैरेटिव मिलेगा कि ये इसमें आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. दैट इज कॉल्ड एक्शन. So that ensure that attraction, sourcing and recruitment is done through the lens of DEI. Okay. And then some more narrative to explain that conscious effort is made to attract applicants from diverse groups to achieve and maintain a workforce that is equitably representative across levels and functions. Advertising and recruitment are targeted to diverse communities. Diversity on interviewing panel is structured and staffing. Hiring managers are educated on the impact of conscious and unconscious bias.
Recruitment process is regularly reviewed to ensure that it is equitable and fair. Hiring of underrepresented groups is roughly proportionate to their representation. There are clear D&I measures of success throughout the recruitment process. यानी इसमें उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया. अब जो अगली चीज जो मैं कह रहा था कि इसको क्वांटिफाइबल कैसे किया रिक्रूटमेंट को. अब ये रिक्रूटमेंट की कैटेगरी है, इस पे उन्होंने 5 लेवल्स बना दिए, समझेंगे 5 स्टेप्स बना दिए. जो सबसे लोएस्ट स्टेप है उसको बोलते हैं इनएक्टिव. इनएक्टिव के अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज नो एफर्ट टू रिक्रूट एम्प्लॉइज फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स. ये उसका एक बेंचमार्क है. ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होती है वो इनएक्टिव से ही ग्रो करती है. अब जब आप इस लेटर पे ग्रो करके आगे आते हैं तो इनमें फॉर एग्जांपल एक बेंचमार्क आप देखें. अगले जो नेक्स्ट बेटर लेवल है वो है रिएक्टिव. रिएक्टिव का मतलब ये रिक्रूटमेंट इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन रिप्रेजेंटेशन टू मीट न्यूमेरिकल गोल्स और टारगेट्स. ये वो बातें जहां पर आपको कोई रेगुलेटर कहता है या लेबर डिपार्टमेंट कहता है या SCCP कहती है अच्छा जी इतने आपके पास फीमेल होनी चाहिए, तो आप जब कोटास को मीट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव. क्योंकि यहाँ तक आपने इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिटी की वैल्यू को रियलाइज नहीं किया हुआ, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि आपको कहा गया है. उससे जो एडवांस लेवल है वो है प्रोएक्टिव. इसमें क्या है, अब आपने डाइवर्सिटी को प्रोएक्टिव में समझें कि आपने उसकी वैल्यू को समझा है. इस वजह से नहीं कि कंप्लायंस है तो आपने किया है, वैल्यू को समझा. इंटरव्यूज कंडक्ट कल्चरली कॉम्पिटेंट इंटरव्यूज. ठीक है, तो कल्चरली कॉम्पिटेंट इंटरव्यूज में ये है कि आप बंदे को अपने लेंस से नहीं देखते. ये नहीं कि अगर आपने खुद दाढ़ी रखी हो तो आप कहें यार मुझे सारे दाढ़ी वाले पसंद हैं, या अगर आपने खुद क्लीन शेव किया हो तो आपको फिर अपोजिट आदमी बुरा लगे. अगर आप पंजाब के तो आज सिंधी बंदे से एलर्जिक हो जाएं. अगर आप फीमेल हैं तो आपकी अपनी कोई सेंसिटिविटी, यानी यू आर कॉम्पिटेंट कि आप कल्चर डिफरेंट पीपल लोगों को कल्चरली कैसे उनको एकोमोडेट कर सकते हैं. इससे अगला लेवल जो है इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव, जिसमें एक बेंचमार्क है द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रिक्रूट्स पीपल फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव लेबर मार्केट. ठीक, लेबर मार्केट में ये है कि अगर आपको डेमोग्राफिक्स हैं कि मेरे इस एरिया में इतने लोग फीमेल हैं, इतने डिसेबल हैं, इतने माइनॉरिटीज़ के ग्रुप हैं जिसको आप नॉन मुस्लिम बोलते हैं, या कोई और कैटेगरी है, तो उसके हिसाब से अपनी रिक्रूटमेंट को आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. एंड द नेक्स्ट बेस्ट लेवल इज द ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्शन एंड हायरिंग प्रोसेस रिजल्ट इन मेजरेबल, ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल रिक्रूटमेंट. इन चीज़ों को आप ओपन करते हैं सबके साथ कि यार इतने लोग हमारे पास इस कैटेगरीज के हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं, उनको अपने रिवॉर्ड हायरिंग सारी चीज़ों में आप रिकग्नाइज करते हैं. तो मैंने आपको एक प्रीव्यू दिया है कि स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है. तो उन्होंने इसको स्ट्रक्चर कर दिया और रिक्रूटमेंट के अंदर उन्होंने टोटल 17 बेंचमार्क रखे हुए हैं, 5 लेवल्स हैं. अब ये जो लेवल्स हैं हर कैटेगरी में 5 लेवल्स हैं. फॉर एग्जांपल अगला जो है एडवांसमेंट रिटेंशन, उसमें भी आपको 5 लेवल नजर आएंगे. बेंचमार्क डिफरेंट है, वहाँ पर 17 थे, इसमें 19 है. अगला जो है उसमें जॉब डिज़ाइन क्लासिफिकेशन, इसमें वही 5 लेवल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिस, प्रोग्रेसिव, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड इनएक्टिव. इसमें बेंचमार्क्स 18 हैं. तो टोटल 275 बेंचमार्क्स हैं, 5 लेवल्स हैं और कैटेगरीज आपकी इसमें 17 हैं. तो ये जो मैंने अभी तक बात की है इसको कौन मुझे समराइज वर्जन में रिपीट करके बता सकता है जो मैंने कहा है इस स्ट्रक्चर के बारे में, GDIB? Sir, what I understand is that this structure basically evaluate in 7 categories or 17 categories or 17 areas, and every area they have basically ranked from level 5 to level 1. This is from top to bottom. And in every category out of 17, that is basically further divided into 5 levels, and each level has basically they have coded within each level certain behaviors, actions we basically are performing within the organization. If those actions basically if we while assessing our health check of the system with regards to diversity and inclusion, if we find that my organization is behaving
following the actions that are basically documented in the best level practice. It means my organization level for that particular area is at rank number 5, right? If we are basically performing, or we are basically following the actions or behaviors that basically fall in level 2, it means in that particular category out of 17, we basically practicing diversity and inclusion on the level 2 level status. बिल्कुल ठीक है. तो ये जो लेवल्स हैं और बेंचमार्क्स हैं ना, इस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें कि ये अभी 49 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको यूज़ कर रही हैं पाकिस्तान में, और हर एक का मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल फिरोज 1888 मेल है कराची में, उसने अभी स्टार्ट किया है और उनके 4 मार्क्स हमने इस क्राइटेरिया की हम स्कोरिंग भी करते हैं, वो मैं आपको शेयर करूँगा स्कोरिंग. और ये 5 सालों का ग्राफ है. इसमें अभी तक जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो नेस्ले आ रही है. ठीक है, तो ये जो आपको मैंने लेवल बताए उसकी लेवल्स के अंदर बेंचमार्क्स हैं और उसी की बेसिस पे इनकी ग्रेडिंग होती है. तो ऑर्गेनाइजेशंस को पहले तो खुद पता चलता है कि यार वो कर क्या रहे हैं, कहाँ पर खड़े हैं. इसका फायदा होता है दे आर एबल टू नो कि वो कहाँ पर खड़े हैं और फिर किधर जाना चाहते हैं. तो उस एंगल से ये फिर हम इनकी ग्रेडिंग भी करते हैं कि टॉप 10 कंपनीज जो है ना वो 5 सालों के होराइजन में कौन सी हैं. इस 2021 की 5 साल टॉप 10 कंपनीज बाय स्कोर 5 years, और फिर उस हिसाब से हमारे साल में अवार्ड्स होते हैं इनकी स्कोरिंग की बेसिस के ऊपर, और ये साल में एक दफ़ा इसका प्रोसेस चलता है. ठीक है, तो तमीना आप बताएं जो हमने अभी बात की है इसमें आपको कुछ समझ आया है या क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई है? डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो किस जगह पे स्टैंड कर रही होती हैं. स्टैंडर्ड का नाम क्या है? स्टैंडर्ड का नाम क्या है? चलें, अरसलान अकरम इज आल्सो देयर. अरसलान कुछ आप शेयर करेंगे, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है अभी तक? जी अली. अच्छा, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि इस स्टैंडर्ड को आपको इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दें कि ये है क्या, इसका नाम क्या और हाउ दिस इज ऑर्गेनाइज्ड. अली मैं आता हूँ आपके. जो अभी जो चीजें आ रही है उसको किस तरह से. चलें मैं आता हूँ मैं आता हूँ. तमीना आई कम बैक टू यू. अली आप बोलें. बेसिकली GDIB ने सर्टेन स्टैंडर्ड्स को ना सिर्फ बनाया है बल्कि उसके अंदर सब स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए हैं. उनकी इंक्लूजन के साथ उसको मजीद एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स बीच में ऐड अप किए हैं ऑन द विच के उसकी बेसिस के ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन लेवल से एक नेक्स्ट लेवल पर इजीली प्रोसीड कर सके. सो अब उन्हीं चीज़ों को अगर मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर जाने की हमें ज़रूरत होती है तो ऑब्वियसली उसकी डेप्थ ज़रूरी है. तो डेप्थ जिस वक्त हम देखते हैं किसी भी चीज़ की तो उसमें हमें यूनिट्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होते हैं, और इस स्टैंडर्ड्स के अंदर उन यूनिट्स को बेसिकली क्रिएट किया गया है कि जिनकी बेसिस के ऊपर हम इजीली कोई भी स्टैंडर्ड है, कोई भी बेंचमार्क है, उसको ना सिर्फ इवेलुएट कर सकें, इवेलुएट करने के साथ साथ आगे भी लेकर जा सकें. तो दैट्स व्हाट इट्स एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. बिल्कुल ठीक आपने कहा, बड़ी अच्छी कंसाइज तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं चीज़ को. तो स्टैंडर्ड उसको बेनिफिट ये होता है आपको कि जो चीज़ आप करते हैं वो एक मयार के मुताबिक. स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है मयार. ठीक है, ऑब्वियसली जब तक यूनिट्स नहीं जब तक हम यूनिट्स नहीं डिफाइन करेंगे हम किसी भी चीज का स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं कर सकते हैं. Exactly. So the best thing this benchmark is telling us are the units on which we can measure our progress or measure our weaknesses as well. True, ऐसे ही है. तो उसमें और आपके स्किल सेट पोर्टेबल होता है ग्लोबली, बिकॉज आप फिर कहीं UAE में जाएं, किसी और जगह जाएं,
तो you can say कि यार I'm using something which is globally acceptable because ये सारे लोग जो ना they represent different nationalities, different country. इसमें आपको अफ्रीका भी मिलेंगे, यूरोप के भी मिलेंगे, और पाकिस्तान से हम 2 लोग हैं इसमें, मैं हूँ और डॉक्टर जवाद हैं. डॉक्टर जवाद इज अ फैकल्टी मेंबर इन दी लम्स. ठीक है, तो ये अच्छा. अब आगे बढ़ते हैं, इस कोर डेप्थ में जाते हैं. अब पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डाइवर्सिटी जब हम लफ्ज़ यूज करते हैं तो इसके अंदर है क्या कुछ, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड. आप ये क्वेश्चन कहीं बाय करें तो लोग आपको एक इनफाइनाइट किस्म की लिस्ट देंगे कि ये भी हो सकता है. नो, इट इज क्वांटिफाइबल. इसके अंदर 28 पॉसिबल डायमेंशंस इन डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज. कि आप जब एक किसी डिफरेंट आदमी से बात करते हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे हो सकती है? एज की बेसिस पे हो सकती है, पेरेंट्स की बेसिस पे हो सकती है, बिलीफ सिस्टम की वजह से, कल्चर की वजह से, डिसेबिलिटी, इन सारी चीज़ों का अमल दखल होता है. कल्चर का कैसे होता है कि आप किसी जगह जाते हैं, आप 2-4 दोस्त हैं तो आपको कहते हैं यार चाय लेके आ जाओ. अब आपने अपने गुड फेथ में कहा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि दूसरे बंदे को चाय पसंद ही नहीं है. तो दैट इज वेयर वी नीड टू रियलाइज कि यार मुझे चाय पसंद है तो मैं क्यों दूसरों पे इम्पोज करूं. मैं कहूँगा यार आप बताओ आपने क्या पीना है. हो सकता है वो ग्रीन टी पीना पसंद करे, ठीक है, या हो सकता है वो कहे कि नहीं चाय नहीं. हाँ, तो ये कल्चरली किस कहते हैं ना, एक तरीके तो कल्चर को तो कि ट्रीट समबडी द वे यू लाइक टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ. दूसरा ये होता है ट्रीट समबडी द वे समबडी वांट्स टू बी ट्रीटेड. ठीक है, तो मुझे अगर व्हाइट शर्ट पसंद है तो मुझे अगर आप साथ दोस्ती है तो मैं ये नहीं कहूँगी आपके लिए भी व्हाइट ले लूँ, ऑल्दो कि मैं गुड फेथ में ले लूँ, बट मुझे तो नहीं पता आपके कलर कौन सा प्रेफरेंस है ना. तो इस एथनिसिटी है, जेंडर है, जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन है, जनरेशन, जियोग्राफी, जॉब रोल, लैंग्वेज, marital status, mental health, nationality, native, indigenous identity, origins, parental status, personality type, pregnancy, race, religion, sex, sexual orientation, social economic status, thinking style, work pattern, work experience और work style. अब thinking style को अगर आप थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूँ कि तमाम तौर पे अगर फर्स्ट मीटिंग कर रहे हो या आपके अभी मैं सेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप प्रोएक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक दूसरा बंदा वो नहीं कर रहा, तो मैं ये ना समझूं कि यार दूसरे बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है. हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ट हो, दूसरा इंट्रोवर्ट, ये भी तो हो सकता है ना. कुछ लोग बोलना पसंद ही नहीं करते, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो काम इंटरेस्टेड नहीं है. वो काम इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उनका अपना स्टाइल होता है. सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट एवरीवन कि उस आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को यूज करने के लिए उनके बारे में जानना और उसको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है. तो ये 28 डिफरेंट डायमेंशंस हैं. ठीक है, ये मैं कुछ 3-4 चीजें कवर करता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपसे क्वेश्चन की तरफ. फिर इसमें एक लफ्ज यूज होता है इक्विटी. अच्छा, कई लोग इक्वालिटी भी समझते हैं, तो इसको आपको कुछ इसके बारे में फर्क लगता है कि इक्विटी और इक्वालिटी में कोई फर्क है कि नहीं है? इसको बहुत इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं. इक्वालिटी इज समथिंग दैट यू आर गिविंग 5 rupees टू एवरी पर्सन, and equity is something that you are assessing the need of the money, and you are giving 3 rupees to some person, and you are giving 7 rupees to some other person who's in need, who is in more need for that money. So equity is like that you do justice. इसकी जरूरत के मुताबिक इसको दिया जाए, ना कि सबको एक बराबर दे दिया जाए. एक बराबर देना तो ऑब्वियसली वो यही हो जाएगा कि किसी को हो सकता है उससे ज्यादा की जरूरत हो और किसी को हो सकता है उससे कम की जरूरत हो. तो वो बराबर में ये चीज हमें फेस करनी पड़ेगी. और जब हम प्रॉपरली असेस करेंगे कि किसकी कितनी नीड है और हम उसके मुताबिक जब उसे वो नीड प्रोवाइड करते हैं, तो दैट्स इक्विटी. बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, इक्विटी का इसमें अगर आप गूगल भी करें तो आपको वो इसमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस इमेज को देखें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने एक दीवार क्रॉस करनी है, तो सबको आप इक्वल बॉक्स से देते हैं. जिस बंदे की हाइट है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? आ रही है ना? जी बिल्कुल नजर आ रही है. अब ये जो बंदा शॉर्ट हाइट वाला, ये कभी भी नहीं क्रॉस कर सकेगा क्योंकि हाइट ही शॉर्ट है. ठीक है, तो अगर आप इसको जितनी हाइट शॉर्ट है उतना आप एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दें, लेकिन दीवार उसने क्रॉस करनी है, अपनी एफर्ट पे करनी है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी. ये एक और इमेज है, बड़ा अच्छा है, इसको आप देखें. अब आप किसी को
एक बाइसाइकिल देते हैं, एक साइज का बाइसाइकिल दे दें, इस बंदे के लिए बेकार हो जाएगा, इसके लिए शायद ठीक हो, इसके लिए सूटेबल नहीं होगा, और बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा. तो यू आर ट्राइंग टू गिविंग अ बाइसाइकिल टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन, जिस तरह आपने कहा. और लेकिन क्राइटेरिया जो आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कि आपने कहा ये आपने काम करना है, ये अप्रेंटिस है, आपके इसके साथ प्रोड्यूस करें. तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी. सो इट इज नॉट इक्वालिटी, इट्स इक्वालिटी. Equity is also about the fairness, but equality you can't practice. For example, आप साल के एंड पे आपने bonuses distribute करने हैं, तो you can't give equal bonus to everyone. ये organization में हो नहीं सकता. You have to discriminate between somebody, किसको कम दें, किसको. लेकिन वो criteria क्या है bonus का, वो अगर आपका justifiable है तो लोग उसमें आपको they will not be worried because you are using a framework. ठीक है, बट ये नहीं कि आप बोनस किसी को अपने लाइकिंग पे कम दे दें, किसी को ज्यादा दे दें, दैट वुड नॉट बी इक्विटी. ठीक है. अब 3 लफ्ज यूज होते हैं, ग्लोबल DEI, ग्लोबल डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन. Inclusion is a dynamic state of operating in which diversity is leveraged to create a fair, healthy and high performing organization. यहाँ पर you take all kind of measures to make the diversity successful. आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रैपिडली कुछ फीमेल को हायर करती हैं, लेकिन वो कुछ अर्से बाद ब्रेक कर जाती हैं, क्योंकि अब सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जांपल आपको फीमेल को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चाहिए, उनको मैटरनिटी लीव चाहिए, उनको जो है ना अगर डे केयर सेंटर्स चाहिए, उनको सेपरेट वॉशरूम चाहिए. ये जो एक्स्ट्रा मेजर्स हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन. डाइवर्सिटी होती है कि यू ब्रिंग द पीपल विद अ डिफरेंट with dissimilarity, जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस के हैं, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के हैं, डिफरेंट जेंडर्स के हैं, आप उनको लेके आ गए. लेकिन अगर आपने इंक्लूजन ना की, फॉर एग्जांपल आप ईद पे छुट्टी दे रहे हैं, तो अगर आपने एक क्रिश्चियंस को उसकी फेस्टिवल पे छुट्टी ना दी, तो वो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन कभी इंक्लूड हो गई नहीं. तो जिस तरीके से जो बंदा जिसकी अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं उसको प्रिजर्व करें, उसको रिस्पेक्ट करें, तो उस वजह से जो है ना वो पर्सन, दैट पर्सन, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ ड्रेस ऑल्सो, अगर कोई फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में काम करें फिर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. लेकिन अगर बाकी लोगों ने प्राइवेट कपड़े पहने और बंदा अपने कल्चर के कपड़े पहन रहा है, तो इट शुड नॉट ट्रबल यू फॉर द रीजन कि इफ अगर उसका जॉब के साथ कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं कि आप कहें कि पायलट है तो उस इक्विटी करने के लिए वो धोती बांध के आ जाए. नो, दैट्स नॉट द केस. बट जहाँ पर आपकी चीज रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ करती है, तो आप वो चीज़ों को अलाउ करें और उस पर फोकस ऑन द आउटकम्स रादर देन मेनी अदर थिंग्स जो हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये इक्विटी इक्वालिटी का डिफरेंस हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. एक और टर्मिनोलॉजी होती है इंटरसेक्शनैलिटी. डाइवर्सिटी में इंटरसेक्शनैलिटी वो चीज होती है जब मोर देन वन डायमेंशन ऑफ द डाइवर्सिटी ओवरलैप. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डिसेबिलिटी एक डाइवर्सिटी की एक डायमेंशन है, जेंडर दूसरी डायमेंशन है, तो ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल हो और वो डिसेबल हो, तो वो फिर इंटरसेक्शनैलिटी कहलाएगी, यानी मोर देन वन कैटेगरीज ऑफ द डाइवर्सिटी दे ओवरलैप. ठीक है. तो ये 3-4 टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनको क्विकली कौन एक्सप्लेन कर सकता है वन बाय वन? हम DEI और इंटरसेक्शनैलिटी, लेट्स डू इट वन बाय वन. शम्स आपसे स्टार्ट लेते हैं एंड देन वी रोटेट. ओके, आप अली आप एक्सप्लेन कर दें. First of all, you must know about equity, equality और जो हमारी थर्ड टर्म है कि इंक्लूजन के साथ हमने किस तरह से लेकर चलना है. अब डाइवर्सिटी के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू नो अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स के कहाँ पर डिफरेंसेस जो है उनको हमने मेजर करना होता है. अब प्रॉब्लम ये आती है जब हम डिफरेंसेस को मेजर करने की बजाय आपस में डिस्ट्रैक्शंस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. और डिस्ट्रैक्शंस कैसे बिल्ड होती हैं कि जब हम स्टैंडर्ड्स को नहीं मेजर कर रहे होते बल्कि अपनी सोच के मुताबिक जो भी कोई चीज है उसको लेकर आगे चल रहे होते हैं. अब जैसे हम इसके बेसिक मेजर्स के ऊपर जाते हैं जिसमें आपने जैसे बात की इक्विटी और इक्वालिटी की, और इक्विटी और इक्वालिटी हम इन दोनों चीजों को सेम ही गिन रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और यहीं पर मिस्टेक हो रही होती है. और फिर उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज एवरीवन नीड्स different way to tackle them, different way to handle them, and everyone need
everyone's needs are different. So जब हम उन चीजों को सेम ही पैटर्न पर लेकर चलते हैं इक्वालिटी के पैटर्न पर, तो वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है. इक्वालिटी इज नो डाउट अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग थिंग टू डेल्ट विथ, बट जो है इक्विटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू परस्यू. एंड नेक्स्ट इंक्लूजन जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इंक्लूजन के लिए we need to request somebody else. Thank you, आपने अच्छा कर दिया, गुड जॉब. ठीक है. अच्छा तमीना, आप जरा एक्सप्लेन कर दें आपको इंक्लूजन से क्या समझ आई है, प्लेन अल्फाज में बयान करें, क्योंकि मैं आपको स्टैंडर्ड की लिंक दी है, वहां से आपको सारी चीजें ये आराम से मिल जाएंगी. तो इंक्लूजन को सर एक्सप्लेन कर दें. अदर देन इक्विटी एंड इक्वालिटी, ऐसी चीज जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल के लिए किसी भी इंडिविजुअल ने किसी चीज मकसद को फुलफिल कर रही हो और एक हाई उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रही हो, जो कि आप जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड से रिलेट करी हो, तो वो हम इंक्लूजन में डाल रहे होते हैं. तो इंक्लूजन में आप जो भी डाइवर्स लोगों को लाते हैं उनको वेलकम करते हैं. ठीक है. और वेलकम करने के लिए फॉर एग्जांपल ये हम बड़ा इसको नोटिस करते हैं, यूएस में हम कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं तो वो जब मिलते हैं हमें कॉन्फ्रेंस पे लोग, तो मुझे वो अपनी लैंग्वेज में सलाम करते हैं, इंडिया वाले को नमस्ते बोलते हैं, दूसरे वाले को, क्योंकि वो सब उनको पता है कि यार सबको सलाम, सबको गुड मॉर्निंग एक बंदे को नहीं एप्लीकेबल. और आई नो कि सम ऑफ द पीपल आर सो सेंसिटिव कि वो इस हद तक पूछते हैं. कुछ लोग फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा कुछ यू वांट चाय, उन्होंने टी नहीं कहा. तो अगर इसने जब ऐसी बात की तो आई फेल्ट अ मोर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि आपने देखा होगा आपको अपनी लैंग्वेज में कोई बंदा बात करे, बाहर का आदमी, तो यू फील मोर रिस्पेक्टेड. फॉर एग्जांपल कोई आपको सराइकी में जो है शम्स की बात करेगा, बाहर आप जाते हैं किसी और जगह पे, तो यू फील मोर वैल्यूड. तो उस तरह की चीजें आपको जो है ना वेलकम करती हैं, एंड यू देन हैव अ बेटर रिगार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेल. ठीक है. ओके, सो ये बातचीत होगी. अब हम इसको ड्रिल डाउन करते हैं कि जो जीडीआईबी की बात की हमने, तो जीडीआईबी में कितने ग्रुप्स हैं और कितनी कैटेगरीज हैं, अली आप बताएंगे. आप म्यूट हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही. नहीं, I can't hear you. Okay, now it's coming. It is okay now. My voice is loud and clear or not? जी, very clear. Thank you. Go ahead, Ali. आवाज आ रही है. I think there is some. Okay, आवाज आ रही है. ठीक है. There are 4 basic contents build करना है और ऊपर लेकर जाना है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन है. फाउंडेशन किस तरह से लेकर करनी है, हमने विजन जो है उसको बिल्ड करना है, स्ट्रेटजी बनानी है और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना होता है. और वो किस तरह से हम करते हैं, हम लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू ये सारे काम कर रहे होते हैं. एंड आफ्टर दैट हमने जो DEI स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है. वो कहां पर करनी है, हमने ऑब्वियसली इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी है, जिसमें हमने क्या करना है कि अपने लोगों को ना सिर्फ एक सेंस ऑफ ऑनरशिप क्रिएट करनी है उनके अंदर, बल्कि लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखना है. तो उसको करने के लिए हमने जो जिन चीजों पर चल उसमें रिक्रूटमेंट को हमने चेक करना है कि हम किन पॉइंट्स के ऊपर कर रहे हैं. देन हमने उनको किस तरह से रिटेंशन के लिए अपने साथ जोड़े रखने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए हमने जॉब को डिजाइन करना है, उनकी क्लासिफिकेशंस करनी है, उनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन को बिल्ड करना है, फिर उनकी जो वर्क लाइफ है. आई थिंक आपकी आवाज मेक एंड ब्रेक हो रही है. तो 2 लोग और भी हैं, आई वांट टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. उबैद और आरफीन, आप कुछ कहना चाहेंगे? Okay, Temina, would you like to take a portion of the slides and explain whatever comes to your mind? Yes, can you please ask the question again? Sorry. Okay, for example, ये लिखा हो ना कि
یہ 4 کیا چیزیں ہیں, یہ 4 جو ڈفرینٹ کلرز میں ہیں؟ Ji. Okay. For any organization, these are, you can say, the main pillars or the 4 groups as mentioned over here. جس میں ہمارے پاس first one آ رہا ہے strategy. جب بھی ہم کسی بھی organization میں if you are talking particularly about the diversity, تو ہم اپنا جو بھی ہمارا vision, strategy, کوئی بھی ہمارا ویژن ہے, فار ایگزامپل اگر ہم ٹیلی کام سے ریلیٹڈ لے لیتے ہیں, تو ٹیلی کام اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل ہونا ہے, تو ہم نے اس سے ریلیٹڈ کیا اپنی اسٹریٹجی کی ہے, ہمارا اس سے بزنس امپیکٹ کیا ہے, اور ہم کس طرح اپنی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو کس طرح انکلوڈ کر سکتے ہیں اپنے اسٹریٹجک پلان میں. اسی طرح لیڈرشپ اور اکاؤنٹیبلٹی اور دین دا فردر DEI اسٹرکچر اینڈ امپلیمنٹیشن میں اس کی کیا کس طرح ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں, کس طرح ہمارے پاس اس کا رزلٹ آ سکتا ہے, کس طرح ہم بیسٹ پریکٹسز کے تھرو اپنی اسٹریٹجی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جب یہ ہم نے اسٹریٹجی کر لی, ویژن کر لیا, اپنا بزنس امپیکٹ کو انالائز کر لیا کہ اوکے بیسڈ آن دس اسٹریٹجی ہمارے یہ ٹارگیٹس ہوں گے اور ہم نے یہاں سے یہ بزنس ایکسٹریکٹ کرنا ہے, تو کس طرح کے لوگ ہمارے پاس ریکروٹ ہونے چاہیے جو کہ آپ کے اٹریکٹ اینڈ ریٹین پیپل میں ہوگا. اور یہ یہاں پر ڈائیورسٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جب ہم اسپیشلی جب ہم ریکروٹمنٹ والی سائٹ پر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹی نیشنل بھی ہوتے ہیں لوگ اور ایون لوکل بیس بھی آپ کے پاس ملٹی کلچرل لوگ ہوتے ہیں, تو ہم نے وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی ریکروٹمنٹ کرنی ہے, ایڈوانسمنٹ اینڈ ریٹینشن. اور آف کورس بیسڈ آن جاب ڈیزائن آپ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ کسٹمر کیئر میں ہیں یا کال سینٹر میں ہیں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ کس طرح ڈائیورسٹی کو ایڈریس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوکل ایریا میں اپنا کوئی کال سینٹر یا کسٹمر کیئر سینٹر انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو وہاں پر اگر لوکل لوگ ہوں گے تو وہ اپنے کسٹمر کو زیادہ اچھے طریقے سے انٹرٹین کر سکیں گے. فار ایگزامپل اگر پنجاب میں ہوں گے تو پنجاب بیسڈ اگر وہ لینگویج بول رہے ہوں گے, یا سندھ میں ہوں گے, یا اگر خیبر پختونخوا میں ہوں گے, تو وہاں کے لوگ اگر اسی لینگویج میں اپنے کسٹمرز کو انٹرٹین کر رہے ہوں گے تو اٹ ول بی مچ مور ڈائیورسفائڈ. یہ ایک ون ایگزامپل تھی. آپ کی کال سینٹر کی جو بہت ساری IVRs ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اکارڈنگلی الائنڈ ہوتی ہے, اور یعنی سو فور اینڈ ہم اس میں اور چیزیں بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں, مثلاً لائک مارکیٹنگ میں, سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن میں, آپ کی جو بھی آگے ہم کس طرح کسٹمر ایکسپیرینس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب چیزیں آپ کی اپنے جب بھی ہم کوئی ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو الائن اینڈ کنیکٹ دیٹ از برجنگ میں آپ کے پاس اسیسمنٹ, میجرمنٹ, ریسرچ, کمیونیکیشن, DEI, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ فردر جب آپ کی اسٹریٹجی ڈیزائن ہو گئی, آپ نے اپنے اچھا ریسورس کو ہائر کر لیا, تو اب ہم نے اسیس کرنا ہے, میجر کرنا ہے کہ جو ہم نے انیشلی اسٹریٹجک ٹارگیٹس اپنے سیٹ کیے ہیں وہ ان کو اسیس کرنا ہے کہ دے آر اکارڈنگ ٹو واٹ وی پلانڈ, اور اس میں ہمیں کس طرح کی کمیونیکیشن چاہیے, ہمارا کس طرح کا لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پلان ہونا چاہیے. اور ایون ایٹ دا ٹائم آف اسٹریٹجی وی ایون انکلوڈ دس ان آور پلان کہ ہم نے کون کون سی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. لیکن جب ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ ایز پر آور پلان نہ ہو, یا ہم جب میئر کریں تو بہت ساری نئی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہوں, تو ہم اس وقت بھی یہ چیز انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اوکے دیز آر دا تھنگس دیٹ وی کین انکلوڈ اور لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور اگر آپ کی گروتھ بہت اچھی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سسٹین کرنا ہے, یہ ہم الائنمنٹ اور کنیکٹ میں انکلوڈ کر لیں گے. اس کے بعد ایکسٹرنل میں کمیونٹی, گورنمنٹ ریلیشنز اینڈ فلانتھراپی, سروسز, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, مارکیٹنگ, کسٹمر سروسز, رسپانسبل سورسنگ. اچھا, اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے یعنی یہ آپ کے سارے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ کس طرح آپ نے ان کے ساتھ اپنا ریلیشن بلڈ کرنا ہے, کس طرح آپ کی جو PR ٹیم ہے اور ایون انٹرنل ٹیم کی وہ کس طرح آپ کی پروڈکٹ کو, آپ کی سروسز کو کس طرح ایکسپلین کرتی ہے, مارکیٹ کرتی ہے, کسٹمر کو بتاتی ہے. That's all. پرفیکٹ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور وہ میں آپ کو دوبارہ یہ بار بار مینشن کرتا ہوں, جو آپ کو اسٹینڈرڈ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا, آپ نے نوٹ کیا لنک جو میں نے شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ چیٹ باکس میں, تہمینہ آپ نے بعد میں جوائن کیا نا, تو یہ میں نے
चैट बॉक्स पे ये एक लिंक शेयर किया जहाँ से ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये आप इनको डाउनलोड कर सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड. इट्स कॉल्ड GDIB स्टैंडर्ड. ठीक है, तो Right. ठीक है, यहाँ से आप इसको मैंने लिंक दोबारा भिजवा दी है. इट्स फ्री डॉक्यूमेंट है. But a lot of money has been spent. I think more than $100,000 has been spent on developing this standard. But since there are donors, so for that is how it is being done. अच्छा, अब हम ये जो अपनी चीज़ें एक्सप्लेन की है इसको ज़रा और एक्सप्लेन करेंगे. वैसे इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल कोर्स है जो हमारे तकरीबन 24 आवर्स में हम करवाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड. तो वो इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. लेकिन अभी चूंकि 2 घंटे का तो आप इसमें एक प्रीव्यू ले सकते हैं. जाहिर बात इतने डेप्थ में नहीं जा सकते. तो बट आई होप कि यू विल बी एबल टू गेट अ जिस्ट ऑफ व्हाट वी कैन डू इट इन 1 आवर. ठीक है, तो अब हमने जो कैटेगरीज की बात की उसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन जिस तरह इसी सीक्वेंस को देखिएगा. विजन, लीडरशिप, स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, एडवांसमेंट, कॉम्पनसेशन, assessment, communication, learning, sustainability, community, product and services, marketing, responsible sourcing. अच्छा, हर कैटेगरी की एक्सप्लेनेशन है. ड्राइव द स्ट्रैटेजी. कई ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट अवे ऑपरेशन लेवल पे D&I को करने की कोशिश करती हैं कि बाय ट्रेनिंग करवा दें, लोग हायर कर दें. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जब तक KPI नहीं होते और वो इसको सीरियस नहीं लेते और उसको अपने लिए रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करते, बजट, प्रॉपर स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब डिस्क्रिप्शन वो नहीं होती, तो वो ये बहुत लो लेवल की एक्सरसाइज होती है. इसलिए आपने देखा होगा सेशन के डाइवर्सिटी कई ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करती. उसकी वजह उनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती. तो आपकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस बनाना और जेन्युइनली देखना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस कुछ चीज़ें करने या ना करने के क्या नुकसान है. तो अभी हम जब अवार्ड्स के अंदर फॉर एग्जांपल एक बैंक ने हमें बताया HBL ने कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ब्रांच में 23% से ऊपर जब डाइवर्सिटी गई है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम जंप कर गई. तो फिर हमने उसको प्रूव किया और भी देखा बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या वाकई ऐसे ही है. तो अब उन्होंने देखा और प्रूव हो गया कि वाकई डाइवर्सिटी अप करने से आपको चैलेंजेस तो आते हैं, क्योंकि आप ब्रांच में आप फॉर एग्जांपल फीमेल को हायर करते हैं तो फिर आपको उसके लिए मैटरनिटी लीव का भी करना पड़ता है, आपके लिए सेपरेट वॉशरूम भी करने पड़ते हैं, किसी जगह सेपरेट प्रेयर रूम भी करने पड़ते हैं. ये खर्चे तो हैं, लेकिन फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उसको वो जस्टिफाई कर देती है. तो स्ट्रैटेजी बनाना इज नंबर 1 थिंग. दूसरे में क्या, अट्रैक्ट एंड रिटेन पीपल. इस कैटेगरी में बेंचमार्क डिफाइन है कि कैसे आप इस लेटर के ऊपर इनएक्टिव, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रोग्रेसिव, बेस्ट प्रैक्टिस, इस पर अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. तो जो स्टैंडर्ड है वो डिफाइन करता है कि आपको क्या करना चाहिए. ये डिफाइन नहीं करता कैसे करना चाहिए. यानी फॉर एग्जांपल आप हायरिंग की बात करें तो हो सकता है आप हायरिंग फेसबुक से कर रहे हो, लिंक्डइन से कर रहे हो, हेड हंटर के थ्रू कर रहे हो, दैट इज योर चॉइस. वो आपको डिक्टेट नहीं करता. कि ये है, कहता है कि अट्रैक्शन, सोर्सिंग, रिक्रूटमेंट इज डन थ्रू द लेंस ऑफ DEI. लेंस ऑफ D&I क्या है कि मैंने सिर्फ अपने जैसे लोगों को नहीं देखना कि जैसा मैं हूँ तो मैं देखूँ इस तरह के लोग मुझे मिल जाए. नो, आई हैव टू कंसिडर कि लोग मेरे से डिफर करेंगे और वो डिफरेंस जो है ना मुझे थ्रेट फील ना हो. Ensure that D&I is integrated into professional development, performance management, advancement, retention. Ensure that job design and classification are evaluated for bias. इस आपने आजकल बहुत सुना होगा पे गैप का, कि वही काम अगर मर्द करे और औरत करे तो उसके देयर इज अ वाइडर पे गैप. तो इस तरह की जो बायसेस हैं उसको आप रिक्रूटमेंट में कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये उसके बारे में. अलाइन ग्रुप 3 जो है, एक सेकेंड, जो ग्रुप 3 है अलाइन एंड कनेक्ट, उसमें वहाँ पर आपके पास असेसमेंट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं और आप उसमें वहाँ पर जाके चीज़ों को असेस कर सकते हैं. और जो ग्रुप 4 है वो आपका सोसाइटी के बारे में, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर की नीड के साथ अलाइन करना है और कम्युनिटी को देखना है कि आप कम्युनिटी में लोगों को कैसे सर्व कर सकते हैं. उनकी जो कम्युनिटी की नीड है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कम्युनिटी की नीड को एड्रेस करते हुए, कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक लोगों की खास प्रेफरेंस है, फूड की प्रेफरेंस है, क्लॉथिंग की प्रेफरेंस है, कोई आप यूटिलिटी आइटम जब उसको कैटर फॉर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चीज़ें अब जाएंगी. ये मेन ग्रुप्स के बारे में. अब ज़रा डिटेल है कि कैटेगरीज के बारे में. 15 कैटेगरीज हैं. पहली कैटेगरी जो ग्रुप 1 में आती है, विजन, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर. इसमें आपने D&I का प्रॉपर रैशनल होना चाहिए. आपके पास एक बिजनेस केस. बिजनेस केस बनाने के लिए या तो आपके पास अपनी कोई एग्जांपल हो, अगर अपनी नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपनी किसी पीयर ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और अगर वो D&I कर रही है तो उसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कर रहे हैं, उनको इसका क्या फायदा हुआ है, सो दैट यू कैन सेट सर्टेन बेंचमार्क्स.
कैटेगरी 2 है लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी. यहाँ पर आप KPIs बनाते हैं D&I रिलेटेड और कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं कि आपने इस दफ़ा ये इस नंबर को यहाँ लेके जाना है. आपने जेंडर फॉर एग्जांपल आपने कहा हमारे पास 5% है, 2021 में आप 8% पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसके बोनसेस उन चीज़ों के साथ टाई अप करें. अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी. जैसे आपने देखा रोड की मोटरवे के ऊपर सारे सीट बेल्ट पहनते हैं, GT रोड पे सीट बेल्ट नहीं पहनते. आई थिंक हालांकि सीट बेल्ट तो पुलिस के लिए नहीं होता, बंदे की अपनी सेफ्टी के लिए होता है. बट यू नीड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अगर सीट बेल्ट को मोटरवे पे आपको पता है चेकिंग मजबूत है और मुझे कुछ छोड़ेगा नहीं, तो दैट इज व्हाई वेयर द सीट बेल्ट. तो अकाउंटेबिलिटी को बिल्ड करना जरूरी होता है. फिर आपके D&I स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास इस काम को करने के लिए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सपोर्ट की जरूरत होती है, जिस तरह मैनेजरियल लेवल पे, हेड लेवल पे, बोर्ड लेवल पे. तो दैट इज रिक्वायर्ड. कैटेगरी 4 में HR का कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट का. कैटेगरी 5 में एडवांसमेंट ऑफ रिटेंशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैंने दो बेंचमार्क लिखे हुए, जिससे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल एडवांसमेंट ऑफ रिटेंशन में क्या है, द D&I इज इंटीग्रेटेड इनटू द टैलेंट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांसमेंट एंड रिटेंशन स्ट्रेटजीज. ये आप उन लोगों को ऊपर लेके जाते हैं. सिर्फ एंट्री लोअर लेवल पे उनको नहीं भर्ती करना, उन लोगों को आपने एडवांस भी कराना है. उनको लैंग्वेज के बैरियर्स हैं उसको ओवरकम करें, उनको एक्सपोजर दें, so that you are able to have those people in the top management also, even at the board level also. ठीक है. Category 6 is job design, classification and compensation. No differentiation, no disparity in your compensation. 7 में work life integration. अब flexibility and benefits, यहाँ पर वो सारे benefits आ जाते हैं जो आप avail करके अपने काम को continue कर सकते हैं. For example, आपको पता है कि लाइफ साइकिल में फीमेल की maternity leave ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो द पर्सन कैन नॉट हैव सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ. उसको आप चैलेंज ना लें, मेक इट अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड शी कैन रिज्यूम. अब जिस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोग्राम करवाती हैं, टेलीनॉर और नेस्ले करो आगाज़, नया आगाज़, नेस्ले का है करो एतमाद, वो इस तरह की फीमेल को आगे लेके आती हैं. इवन डिसेबल्स को, जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप हो, उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी और बेनिफिट्स देते हैं, रैंक्स प्रोवाइड करते हैं उसको, ताकि वो लोग वहां पर जाके सक्सेसफुली ऑपरेट करें और उनके बिजनेस को आगे लेके जाएं. असेसमेंट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मेजरमेंट नहीं करते, उसको असेस नहीं करते कि मेरा जो बिजनेस प्लान मैंने बनाया था, बिजनेस केस बनाया था, क्या उसको ये मीट भी कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये कैटेगरी 8 है इसके बारे में. कैटेगरी 9 कम्युनिकेशन. आप जब कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, तो यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज. ये नहीं कि आपने अपनी ऐड दे दिया. ये मैंने इसको खुद नोटिस किया था. आई वाज सर्विंग इन अ माइक्रो फाइनेंस बैंक व्हिच वाज ऑपरेटिंग इन द रूरल एरिया, और वो अपना जॉब ऐड देते थे डॉन में, 8 लाख रुपए के ऐड देते थे, और कोई भी उनका रेलेवेंट बंदा अप्लाई नहीं करता था उस पर, बिकॉज डॉन अभी सिंध में कहाँ पर पड़ी जाती है मुझे बताएं आप. अगर हम अपनी ब्रांडिंग के एंगल से डॉन में ऐड देते थे, अगर रेलेवेंट, क्योंकि हमें बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हायर करने होते थे, तो इसके ऊपर हमने पूरी एक रिसर्च की. हमने कहा, तो हमें पता चला कि जिन लोगों को हम हायर करना चाहते हैं, वो तो हमें वो जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं ना, उससे आपको मिलेंगे जो आपकी कम्युनिटी में पढ़े जाते हैं. हाँ, अगर आपने IBA का ग्रेजुएट हायर करना है, लम्स का करना है, फिर तो डॉन ठीक है. लेकिन अगर आपने उन लोग हायर नहीं करना, वो लोग रूरल एरिया से हायर करना है, तो वन हैज़ टू सी कि जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो आप प्रॉपर ऑडियंस के साथ भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. देन D&I लर्निंग एंड डेवलपमेंट. इस D&I करते हुए आपको कुछ लेसन एक्वायर होते हैं, उसको आप अपने लर्निंग में इंक्लूड करते हैं. हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ होती है, हम कहते हैं सक्सेस स्टोरीज. SHRM की US की कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा मैं गया, तो GS के इंडिया से एक डायरेक्टर आया हुआ था, एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग अ फेल्ड स्टोरी. तो मैंने कहा यार ये सक्सेस की तो मैंने बात सुनी थी, ये फेल्ड स्टोरी क्या चीज़ होती है. उसने कहा यार हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोसेस रखा हुआ है, जो चीज़ काम नहीं करती उसको भी हम सर्कुलर करके सबको बताते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि दोबारा उस पर कोई गलत बंदा एक्सपीरियंस ना करे. तो लर्निंग इज नॉट ऑल अबाउट सक्सेस, लर्निंग इज अबाउट द फेलियर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, शम्स में यहाँ से मुल्तान जा रहा हूँ और मैं इधर से किसी और रूट से ले जाता हूँ, मैं इस जो नई मोटरवे बनी हुई है, और वहाँ पर कोई इशू है, तो अगर आपकी बात सुन के मैं उसको अवॉइड करके दूसरा रूट ले लूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, वरना मैं खुद ही एक्सपीरियंस करके वहाँ पर जाके रुक जाऊँगा, फिर वापस मुड़ूंगा. तो लर्निंग इज अबाउट बेनिफिटिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स पीपल. तो वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कभी हमेशा 100% सक्सेसफुल नहीं होते, फेल्ड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. उन सारी चीज़ों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना. ठीक है. कनेक्टिंग D&I विद सस्टेनेबिलिटी.
اور پھر ہے آپ کے پاس کمیونٹی گورنمنٹ ریلیشنز فلینتھراپی. یہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سروسز اینڈ پروڈکٹس, embed D&I in the services and the product development to serve diverse customers. For example, ابھی حبیب بینک ہے, چھوٹی سی ان کے پاس ایک پروڈکٹ ہے نسا, اور وہ اس پروڈکٹ کے تھرو انہوں نے پورے بینک کی پروفیٹیبلٹی بڑھا دی ہے, بیکاز دے اینالائز کہ دیر از اے ان بینکیبل سیگمنٹ ان دا وومن. اور بینک میں موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ فیمیل کے اکاؤنٹ نہیں ہوتے, میل کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ایون اگر آپ کسی فیمیل کو گرانٹ بھی دیں, جیسے ابھی ہوا ہے احساس پروگرام میں, تو ادروائز اس کا میل ہی ریسیو کرتا ہے اس طرح کی چیزیں. تو دیر از اے شارٹ فال. تو یہ نئی جو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, فار ایگزامپل ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں, جیز کا موبائل والیٹ ہے, اس طریقے سے یو گیو مور ایکسیس, اور اس کے اندر وہ اپنی سیونگ بھی کرتی ہیں. تو میں بار بار وومن کے ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, آلدو اٹس ناٹ دی آل کمپوننٹ, جسٹ ون کمپوننٹ, بٹ اٹ از اے پریڈومیننٹ کمپوننٹ. تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے جو آپ کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اور یو کین امپروو یور آؤٹ ریچ. سر 12 کیا تھا سر؟ 12 کیٹیگری کمیونٹی گورنمنٹ ریلیشنز اینڈ فلینتھراپی. ٹھیک ہے, اس میں سر یہ CSR, اس میں CSR ایسپیکٹ ایگزیکٹلی CSR ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں اپنے جو سوشل رسپانسبلٹی کے انیشیٹوز ہیں, تو اب اس میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اینگرو فار ایگزامپل, ان کا ایک بزنس ہے پالیمر کا. ٹھیک ہے, اب اینگرو پالیمر جو PVC بناتے ہیں, تو اب انہوں نے اس کو لنک کیا ہوا, اب جو پائپس بناتے ہیں ساتھ وہ CSR بھی کرتے ہیں. تو دے پرووائڈ دس کائنڈ آف pipes to some of the neglected areas in the form of the water supply schemes. ٹھیک ہے, تو یعنی اپنی پروڈکٹ کو یہ نہیں کرنا کہ یہ 10 لاکھ روپے یہ کسی کھانے والے کو دے دیں, وہ بھی فلینتھراپی میں آتا ہے, بٹ بزنس کے ساتھ انٹیگریٹ کر, جس میں ان کا بزنس بھی چل رہا ہے اور اس بزنس ریلیٹڈ وہ اس طریقے سے اپنی یعنی دے آر بینیفٹنگ دی انوائرمنٹ. سو اپنی جو آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشنز ہیں یا کوئی فلینتھراپی کرتی ہیں, اس کے ساتھ پراپر کپلنگ چاہیے ہوتی ہے, تاکہ آپ اپنے بزنس کو یوز کریں لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, رائٹ. سروسز اینڈ پروڈکٹس, مارکیٹنگ اینڈ کسٹمر سروس از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ اپنی کسٹمر سروس میں ان لوگوں کی ریپرزنٹیشن, اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے آدمی وہی ہو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں نا, یہاں پر اگر آپ کے پاس ایک گریٹر آپ پنجاب میں, اور آپ چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میری آبادی میں یہاں پر ڈیموگرافکس وائی پٹھان ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ پٹھان کو ہی ہائر کریں, آپ کو پنجابی آدمی بھی اگر تھوڑی بہت اس سے وہ لینگویج بول کے اپنی کوئنٹنس بلڈ کر سکتا ہے, اور اگر پٹھان آدمی ہوگا تو زیادہ اس کو ویلکم کریں گے. تو اس طرح اپنے بزنس کے اندر اس لوگوں کو لے کے آتے ہیں, تو پیپل فیل مور ویلیو, دے تھنک کہ وی ول بی بیٹر لکڈ آفٹر. ٹھیک ہے, اور فائنل ون جو ہے نا وہ ہے رسپانسبل سورسنگ, سپلائی چین. اب اس پہ چونکہ ہم اوارڈس کرتے ہیں تو آرگنائزیشن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح میٹرو ہے, اس طرح ایک دفعہ CHRO سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا یار ہم بہت ایمفسائز کر رہے ہیں, ہمارے جو سپلائرز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ نارمل ویمن کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے, شلوار قمیض ہیں, شرٹس ہیں, یہ ایمبرائڈری کی چیزیں ہیں, یہ لوگ گھروں میں بناتے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے دے وانٹ ٹو کریٹ این اپرچونٹی فار دیم ٹو میک منی. سو اپنی سپلائی لائن میں دے وانٹ کہ ہمارا سپلائر اچھا ڈسیبل کیٹیگری سے بھی ہو, اگر ہو سکتا ہے فیمیل سے بھی ہو, مائنورٹی سے ہو, نان مسلم سے ہو, so that وہ اپنی تھرو دا سپلائی لائن دے میک دیم پارٹ آف دی بزنس پروسیس. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی چھوٹی سی بریف ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ کو دی ہے, اور آلریڈی میں آپ کو پہلے بھی مینشن کیا ہے, تبھی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو اسٹینڈرڈ کی کاپی ہے نا, یہ اس اسٹینڈرڈ میں ہر چیز کلیئرلی لکھی ہوئی ہے. کہ اب فار ایگزامپل آپ اس میں جاتے ہیں کہ یار اسیسمنٹ, یہ ساری کیٹیگریز کے بینچ مارکس ہیں, اور کسی بھی آپ اسٹینڈرڈ ایلیمنٹ کو اٹھا کے اس کیٹیگری میں جا کے تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کیا کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کیسے کرنا ہے دیٹ از یور چوائس. تو جیسا کمیونیکیشن آپ کہتے ہیں جی مجھے کمیونیکیٹ کیسے کرنا چاہیے, اس ہائیسٹ لیول پہ کیا ہے, دی آرگنائزیشن از نون فار اٹس ہائی کوالٹی D&I initiatives that are regularly communicated internally and externally, enhancing organization reputation. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح ٹیلینور ہے, اب وہ اپنے آپ کو انکلوسیو آرگنائزیشن کہتا ہے, تو اس کا CEO ہر D&I انیشیٹیوز میں, اب فار ایگزامپل ایک انیشیٹیو چل رہا ہے میل چیمپئن آف دی جینڈر ڈائیورسٹی, اس میں وہ اس کا پارٹ ہے, تو وہ اپنے آپ کو ویزیبلٹی رکھتا ہے کہ یار ڈائیورسٹی میں میری پریزنس ہونی چاہیے تاکہ آرگنائزیشن سیریس لے.
कई ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं यार छोड़ो डाइवर्सिटी पे, सीनियर बंदा कोई नहीं जाएगा, यंगस्टर को भिजवा दो, सुपरवाइजर को भिजवा दो, देख। तो ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसकी एक थर्ड लेवल की एग्जांपल क्या हो सकती है? The purpose of the D&I initiatives are clearly stated. Communication strategy are adopted for the different stakeholders. ये आपकी एनुअल रिपोर्ट में आ सकती हैं। और इसकी लीस्ट जो है ना वो है there is no explicit communication on D&I, ये इनएक्टिव है। तो इसी तरह इनएक्टिव, रिएक्टिव, ये आपका लेटर बनता है, इनएक्टिव, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रोग्रेसिव, बेस्ट प्रैक्टिस। ये जो फ्रेमवर्क है ये सारी चीजों पे एप्लीकेबल है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं इसी लेटर के थ्रू करें, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बात की है, कोई क्वेश्चन है आप पे यहां तक तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट भी है फिर भी बताइए। आर यू कंफर्टेबल? तमीन आप बताइए। Yes, so far it's going very good. As I told you कि जो 2 hours में मैं आपको कुछ selective portion नहीं देना चाहता, I want to give you a big picture, but at the same time I want to facilitate you with something that you can read in own times to become more proficient. अच्छा, लोग कुछ कम हो गए, 5 पे आ गए, दरमियान में मोहम्मद अली का आई थिंक बार-बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वो जो 5 लेवल्स हैं जो मैंने आपको शेयर किए हैं, ये उनकी डेफिनेशन है। इनएक्टिव का क्या मतलब होता है? इनएक्टिव का मतलब है कुछ भी नहीं हो रहा। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि आप कुछ कर रहे हैं बट कंप्लायंस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, चूंकि आपके ऊपर प्रेशर है गवर्नमेंट का या किसी एजेंसी का। प्रोएक्टिव में आप D&I को वैल्यू करते हैं बट यू जस्ट स्टार्ट विद इट। प्रोग्रेसिव में आपके पास इसके रिजल्ट्स होते हैं कि अच्छा यार हमने ये काम किया, जैसा मैंने कहा ना, ब्रांचेज ने, HPL ने डाइवर्सिटी को इम्प्रूव किया और 23% से ज्यादा जो है तो उनको रिजल्ट नजर आए। ये वो स्टेज होती है जो करने के बाद आपको नजर आती है। और बेस्ट प्रैक्टिस में आप इतने हाइट पे जाते हैं, इतने आपकी अच्छे तरीके से करते हैं, यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर, यू आर नोन एज एग्जाम्पलरी इन द इंडस्ट्री। ये वो 5 लेवल की डेफिनेशन है, ठीक है। और ये उसका जो मैंने आपको स्टैंडर्ड दिखाया उसी का एक इमेज है। हर कैटेगरी के नंबर है, लेवल्स हैं और उसके बेंचमार्क्स हैं। अब आपने D&I को यूज करना है, इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं कि आप कह रहे हैं यार मैंने कंप्लायंस की वजह से कर रहा हूँ, सोशल जस्टिस की वजह से कर रहा हूँ, लोगों को की कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि अब SHRM है जिसकी ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जो हम पाकिस्तान में कराते हैं, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, उसमें अब D&I इज द नंबर 1 बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी, क्योंकि जो लीडर आपका इंक्लूसिव नहीं है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू प्रमोट डिग्निटी फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द पीपल आर वैल्यूड एंड यू वांट टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट यू कैन यूज टू D&I, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप छोड़ें। इसमें अभी जो नेक्स्ट चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको कवर करना चाहिए कि अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं ना स्टैंडर्ड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं आपको स्लाइड्स भी बाद में दे सकता हूँ। इसके ऊपर स्टैंडर्ड के ऊपर एक चेकलिस्ट है, गाइडलाइंस हैं, ठीक है। और वो गाइडलाइंस का पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, चेकलिस्ट। तो इस तरह की चेकलिस्ट होती हैं जो कि आपको, आप ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को जाके अपनी खुद असेस कर सकते हैं, लेकिन इस चेकलिस्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के बाद, अंडरस्टैंड किए बगैर इसको करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी चेकलिस्ट है, मैंने स्लाइड में इसको डाला हुआ है, मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ और आपको मैं कंफर्टेबल टू प्रोवाइड दिस चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या अगर आपने करना है कि आपने ये देखना है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में इसको करने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए। अच्छा, चेकलिस्ट को जरा मैं एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू, आई थिंक अदरवाइज आल्सो वी आर कंप्लीटिंग आवर टाइम इन अनदर 15-20 minutes, but I can devote some more 5 to 10 minutes extra also just to make sure that nothing is left out, but I want to take a 5 minutes break if you're okay with it, ठीक है। तो अभी 4:47 हुए, 4:52 पे we can resume and we can start with them, ठीक है।
Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Shams, Tamina, I hope you're there.
Are you people back? जी सर. चलें, good. जी. Standards. ठीक है. अच्छा, तो हम अभी डिस्कस करते हैं कि आप इसको स्टैंडर्ड को अगर आपने यूज़ करना है, कहीं कंसल्टेंसी करनी है, कोई ट्रेनिंग करवानी है, तो वो कैसे कर सकते हैं. ठीक है, इसमें स्टेप्स हैं. पहली बात तो ये कि आप अपने आप को तैयार करें, get maximum information about the standard, the structures, the categories and the kind of actions which are required. फिर जहाँ से आप करना चाहते हैं उसकी मैनेजमेंट के साथ अप्रूवल, ऑब्वियसली अप्रूवल के बगैर आप नहीं करेंगे, लेकिन उनको बारे में एक्सप्लेन करना, बिकॉज दे वुड नॉट बी नोइंग अबाउट द डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड. किस किस को इन्वॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आमतौर पर DNI के सवाल जो है ना वो HR के लोगों से किए जाते हैं. दैट्स नॉट द केस. आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा इसमें स्ट्रैटेजी भी इन्वॉल्व है, HR भी है, सप्लाई चेन भी है, बिजनेस भी है. तो यू शुड बी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड इसको सक्सेसफुल वे में करना चाहते हैं तो इसकी असेसमेंट में आप तकरीबन तमाम लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव जिसके बाद जो इसको D&I का एक्टिविटीज़ का स्कोप का पता हो कि यार मेरा फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन का आदमी है, तो उसको पता हो कि यार D&I सप्लाई चेन में क्या होती है. उसको तो नहीं पता होगा बिकॉज वो टेक्निकल आदमी है. तो आप उसको उसका रेलेवेंट पोर्शन दें पढ़ने के लिए, ताकि जब आपके साथ कॉन्वर्सेशन करें तो वो अंडरस्टैंड कर सके आप क्या पूछ रहे हैं. ठीक है. और 15 कैटेगरीज हैं. अब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती जो कि सारी की सारी कैटेगरी में मास्टर हो. इवन हमारे पास ये टोटल डेटा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें पाकिस्तान की बहुत लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है किसी चीज़ में. तो अब किसी जगह फॉर एग्जांपल ये अब से एक कंपनी में कहता हूँ एंग्रो एनर्जी है, तो वो फॉर एग्जांपल लीडरशिप में वो काम कर रहे हैं और लेवल 4 पे हैं, जो हमारी प्रोग्रेसिव. रिक्रूटमेंट में लेवल 4 पे हैं, किसी में 3 पे हैं. तो 100% आपको बॉक्सेस किसी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सारी 100% कर रही है. वो आइडियल सिचुएशन होती है, बट दे आर स्ट्रगलिंग. वो एक से स्टार्ट करते हैं, दूसरे में जाते हैं, तीसरे से. दैट्स हाउ द D&I इवॉल्व्स. तो आप भी ये अप्रोच ले सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में असेसमेंट अगर करने का मौका मिले तो आप उनसे कहें कि यू हैव टू यू नो, कहते हैं ना, देयर आर व्हाट यू कॉल, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, देयर आर स्टेयर्स टू सक्सेस. उन्होंने स्टेयर्स को चढ़ना है वन बाय वन करके. ठीक है. फिर आप इसका प्रोसेस होता है D&I को यूज़ करने के लिए कि आप जो बंदा यूज़ करे वो नॉलेजेबल हो, उसको खुद इस चीज़ का पता हो. चेक लिस्ट है उसके पास हो, आपको चेक लिस्ट अभी दे देता हूँ. ठीक है, इसमें अपलोड कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लें यहाँ से. ठीक है. चाहिए चेक लिस्ट दूँ कि ना दूँ? Yes sir, please. Yes, please. ठीक है, ये आपको मैंने अपलोड कर दिया, आप डाउनलोड कर लें. तो वो उसमें ये सारा प्रोसेस जो है उसके अंदर लिखा हुआ है. आप तसल्ली से करें, पढ़ें, उसको अंडरस्टैंडेबल है. डाउट हुआ तो यू कैन सेट अप अ कॉल विद मी टू एक्सप्लेन यू. प्रोसेस में चाहिए कि फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 to 7 पीपल, डिपेंडिंग कितनी कैटेगरीज के ऊपर आप कर रहे हैं. अगर आप 15 कैटेगरी में करें, गो फॉर 15 पीपल. क्योंकि जो बंदा जिसके बारे में बात करे वो नॉलेजेबल भी हो ना. अगर बंदा रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते तो वो रिक्रूटमेंट कर रहा होगा तो आपको बेहतर बताएगा, वरना रिक्रूटमेंट वाले बंदे से अगर आप सर्विसेज एंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपको जवाब नहीं दे सकेगा. इसके असेसमेंट में करना ही होता है कि आपने डिटर्मिन करना होता है कि कौन कौन सी चीज़ आप कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे. जहाँ आप नहीं कर रहे उसकी बेसिस के ऊपर आप डिफाइन कर लेते हैं, ये जहाँ तक मैं चीज़ें कर रहा हूँ इस लेवल मैंने कंप्लीट कर दी है, अब जो रह गया है वो देखूं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर आप करना चाहिए फिर उसका आप गोल डिफाइन करते हैं कि आई एम लेवल 3 doing 2 benchmarks 4.7 4.0 this year we would like to do it 4.9 4.10. इस तरीके से आप अपना ऑब्जेक्टिव करते हैं, सेटअप करते हैं. ठीक है, उनसे डाटा कलेक्ट करके मेक ए फाइंडिंग्स
फाइंडिंग्स में ये होता है कि वही बात कि आपको पता चले कहाँ पर खड़े हैं और किधर जाना चाहते हैं, उसको आप अपनी स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हैं। तो ये डाटा कलेक्शन वाली बात जो मैंने आपको कर दी कि इसको जब आपके पास डाटा आता है तो उसको फर्दर क्वालिफाई करने के लिए आप फोकस ग्रुप कर सकते हैं। ज़्यादा कहते हैं ना पीलिंग द अनियन, आप उसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं लोगों से कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट बेस्ड ऑन द डाटा दे प्रोवाइडेड एंड व्हाट शुड बी अ नेक्स्ट स्टेप। और फिर उसकी फाइनल रिपोर्ट बना के यू कैन गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एरियाज में कहाँ पर खड़ी है और ये किधर जाना चाहती है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स उसमें कवर नहीं करना चाहता बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो कि ये स्टैंडर्ड यूज़ कर रही हैं और इसमें हर साल हम अवार्ड कराते हैं और वो उनके CEO CHRO इसमें अवार्ड्स कलेक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 49 ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल आर रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशंस और वो इस स्टैंडर्ड को यूज़ कर रही हैं एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस स्टैंडर्ड 5 years ago इन पाकिस्तान। ये इस साल के अवार्ड विनर्स हैं इसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हम 26 मई को कराची में करेंगे। ठीक है, इन अवार्ड्स को वैसे दिस इज गॉट नथिंग टू डू, लेकिन कराने के लिए हमें ग्लोबल ज्यूरी बनाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से लोगों को इकट्ठे करते हैं ताकि हमारा जो अवार्ड्स की वैल्यूएशन है वो हम खुद ना करें, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो देन यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन अवार्ड्स। हम अरेंज करते हैं बट इस थर्ड पार्टी डिसीजन। सो ज्यूरी मेंबर्स का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस चीज़ को करके प्रॉपर स्कोरिंग मेथड होता है जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं कैटेगरीज को यूज़ करके वो अल्टीमेटली उस पर ऑर्गेनाइजेशन को बताती हैं कि वो कहाँ पर खड़ी, हर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर खड़ी है। ठीक है, जिस तरह अभी अवार्ड में ये मैं आपको स्क्रीन शेयर की थी कि पिछली वाली का फॉर एग्जांपल ये हमारे स्टेट है इस साल के अवार्ड्स का। हर साल हम मॉनिटर करते हैं कि क्या ग्रोथ हो रही है। तो फॉर एग्जांपल इस दफ़ा ये नंबर D&I के कैटेगरी यूजर जो है ना वो इन्हेंस हुए और फिर ये वो कंपनीज हैं जो D&I को जिस वार्ड में जिस लेवल पर प्ले करती हैं और उनको बाकायदा स्कोर होता है। यानी हम 5 मार्क्स देते हैं हर कैटेगरी के। बेस्ट प्रैक्टिस को 4 मार्क्स होते हैं, प्रोग्रेसिव के 3 मार्क्स, प्रोएक्टिव के रिएक्टिव के 2 मार्क्स और इनएक्टिव के 0 मार्क्स 1 मार्क। तो फॉर एग्जांपल ये एक बैंक है फैसल बैंक, अब इसमें इनके फॉर एग्जांपल ये इनका आ रहा है स्कोर। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर उस पर असेसमेंट होती है ताकि उनको फायदा ऑर्गेनाइजेशन को खुद भी पता चल जाता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो दिस इज दी बेसिकली ओवरऑल अबाउट द GDIB। और अब यहाँ पर बताएं कि अगर आप जो हमने अभी तक बात की है उसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि ये D&I इज नॉट जस्ट द HR पार्ट ऑफ द इट्स नॉट ओनली इंक्लूड द HR, इट इंक्लूड्स होल ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्लूड HR business, your leaders, the core business people, and finally the assessment. उसी की बेसिस जब आप करेंगे तो ये ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, सक्सेसफुल होगा। अगर इसको साइलो में स्टैंड अलोन करके करेंगे तो दिस वुड नॉट बी वर्केबल। ठीक है, तो ओवर हियर आई थिंक आई एम डन विद इट। बाकी अगर आपको फर्दर इसमें कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हैं तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को क्लैरिफाई करा सकते हैं। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इट्स नॉट वन टाइम एफर्ट। कॉन्स्टेंटली अगर आप इसमें अपनी एक्सपर्टीज गेन करनी है, अगर आपने आपको ग्रो करना है तो इस चीज़ को पढ़ें। नई इसमें न्यूज़ लेटर्स आते हैं, आप यू कैन सब्सक्राइब टू द न्यूज़ लेटर। वो जो वेबसाइट का मैंने आपको रेफरेंस दिया था, सेंटर फॉर ग्लोबल इंक्लूजन, यहाँ पर ये आपके सारे पिछले 5 साल के न्यूज़ लेटर होते हैं कि वहाँ पर दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो रहा है। तो इन न्यूज़ लेटर को आप किसी पे क्लिक करें, यू कैन फाइंड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वेरी यूजफुल आर्टिकल्स, वीडियोज़, यू नो, न्यू बुक्स, लर्निंग मटीरियल, ये वहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। बाकी कुछ चीज़ें जो इंटरनली हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड, उसका इनके साथ तलक नहीं है। तो अभी आप बताइए कि हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड डू यू सी अ रियल गेन इन टुडेज सेशन? व्हाट इज what are basically your thoughts? Yes, sir. I would like to add that definitely, sir, we gained a lot new things as well as refreshers of few concepts, and I think we can basically implement that D&I approach department specific as well, and across all organization as well. So I think first taking the first step as first I have to look at my department so that I can basically practice D&I
in one department and get its much better understanding, and then I can further basically add my milestones, adding other departments as well, to further improve its implementation. बिल्कुल ठीक है. तो इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी. कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, खुद के अंदर जाना चाहते हैं, अपने आप को मेजरेबल करें कि मैं मुझे फॉर एग्जांपल D&I करना पड़े तो आई वुड लाइक टू डू अंडरस्टैंड द होल स्टैंडर्ड बट लाइक टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन वन एरिया, कि कम से कम मैं ये तो कह सकूँ कि रिक्रूटमेंट के अंदर डाइवर्सिटी को ऐसे इनकॉर्पोरेट करना है, लर्निंग के कैसे ग्रेजुअली फिर उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है. And sir, if I'm basically evaluating assessing my department, with regards to the alignment purpose, I would also assess in line with the strategy part as well, because that strategy part basically falls in the ambient of every department evaluation. So if I'm क्योंकि देखें जो काम आप कर रहे हैं, जब तक कोई उसको वैल्यू नहीं करेगा ना, जब तक उसके कोई रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करे, उसको रिगार्ड कोई नहीं करेगा. आपने देखो HR में बहुत सारे लोग एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे फन एक्टिविटीज होती हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको इतनी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. तो आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन के चीज़ों के साथ अलाइन करके उनसे एक्नॉलेजमेंट लेके वो करें. बेशक टाइम लग जाए, नो नीड टू रश, नो नीड टू गेट इनटू द एग्जीक्यूशन, फर्स्ट मेक ए गुड स्ट्रेटजी. बिल्कुल ठीक है आपने. right. जी तहमीना. Thank you very much, Zahid. It was a very detailed and constructive session, especially the DEI framework is amazing, and how to measure, and then from this framework we can add further improvement, set our targets. So the overall session is very good. Thank you so much. Pleasure. तो इसमें हमारे पास ग्लोबल ऑडियंस को भी हम ये चीज़ें करवाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी हमने जो पीछे कोर्स करवाया था उसमें हमारे पास इवन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने हमें 5 नॉमिनेशन दी थी इसमें. तो इट्स अ वेरी डिटेल सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन, बट आई थिंक इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एपेटाइट, एटलीस्ट इस तरह के जो सेशंस होते हैं 1 to 2 hours, दे गिव यू अ फ्लेवर ऑफ हाउ इट लुक्स लाइक, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपर्टीज आप इसमें डीप जा सकते हैं. और अब इस वक्त तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि दिस हैज बिकम अ फुल फ्लैज प्रोफेशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन को मैंने नाम बताया, इसमें देयर आर पीपल हु आर एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द D&I. सारे एक लेवल पे नहीं है, किसी जगह हेड लेवल पे हैं, किसी जगह मैनेजरियल लेवल में, किसी ऑफिसर लेवल पे हैं, बट देयर इज अ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट जस्ट अ पार्ट टाइम वर्क. तो आप इसको एज ए करियर भी ले सकते हैं. इट्स अ बडिंग करियर, आई वुड से एन इंटरेस्टिंग करियर आल्सो. And it's got nothing to do कि अगर it's only meant for female or male, anybody can practice it. ठीक है. So if there any other question or you have, otherwise we can close the session. No, thank you so much. Thank you. Pleasure. और I'm also writing my email IDs, I think. So आपके पास तो already है, Shams, but others if you want to have any clarify any queries, you want to have more information, so I would like to type it and you can let me know. Otherwise ये आपको साकिब भी दे सकते हैं. ठीक है जी. और साकिब, आई एम डन विद इट. आप बताइए आप जो कुछ चीज़ अगर रहती है तो, अदरवाइज आई एम ओके टू कंक्लूड. नो सर, थैंक यू सो मच. ऑल इज वेल एंड अच्छा रहा सेशन. चूँकि आपको पता है जूम का, तो पार्टिसिपेंट्स का खास तौर पे थैंक यू सो मच. आपने पार्टिसिपेट किया और एस्पायर इस तरह की ट्रेनिंग्स जो है वो करवाता रहता है, तो मैं इनका मशकूर हूँ जो ये स्टे रहे इस टाइम तक और सेशन को करते रहे. तो आपने बहुत अच्छा सेशन करवाया. अदरवाइज क्वेश्चन आंसर जो हैं वो तो हो चुके हैं ऑलरेडी और सेशन भी हो चुका है. तो एंड में थैंक यू सो मच कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का और कीमती टाइम के साथ इन चीज़ों को समझा. ठीक है. तो शुड बी आई क्लोज एंड एग्जिट? आप खुद ही इसको क्लोज करना चाहते हैं? जी ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. All the best everyone. Thank you. Ali is left, but I'm thankful to him also as Saqib and also the Chaudhry Fazl Mukim. All the best. अपना ख्याल रखिएगा. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.